A very warm welcome to the entire team. 11th September is a very auspicious day for all of the Indians because on 11th September 1893, Swamiji gave his speech on Indian religion in Chicago, after which the world became aware of the Indian wisdom and honored it. And hence this day brought glory to the Indian history. The knowledge imbibed by our ancient saints surpassed the knowledge of the entire world by its scientific outlook. Pawan Chintan Dhara Ashram has been celebrating this day by the name of Gyan Utsav for at least 9 years. Guruji Pawan Sinha ji has been motivating the youth through this program. Last year, our ashram had commemorated this day as a 2-year event celebrating the Gyan Utsav 9, a national youth summit, which was organized on 7th and 8th September. The first day, 7th September, Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind ji, inaugurated the project Rishikul Shala. Rishikul Shala has opened 17 centers all over the country with 983 children across the nation. According to Swamiji, real education is one which enables a man to stand on his own legs. It is our aim at Rishikul Shala to impart this kind of education for the marginalized children and get the youth involved for this nation building. Today, we are here to discuss the new challenges faced by the teachers in the education policy. Swamiji's idea of education, which should be that of life building, man making and character making assimilation of ideas, is to be followed in Rishikul Shala also. Now, I would request you all to see a video which is based on Rishikul Shala. अगर यह देश है तो यह भी देश है, अगर यह भविष्य है तो यह भी भविष्य है। जितना प्रखर भविष्य यह है उतना प्रखर यह भविष्य भी है। लेकिन क्या यह वाला भविष्य कूड़ा बीनेगा, कूड़े के बीच रहेगा? क्या यह वाला भविष्य धूप, सर्दी, पानी झेलेगा? क्या इस भविष्य के सर पर छत नहीं होगी? क्या ये भविष्य पढ़ भी नहीं पाएगा? क्या इस भविष्य को होने दे बर्बाद अपराधियों से, बीमारियों से? क्या इस भविष्य को यह महसूस होने दे कि यह देश, यह समाज उनका नहीं है? और अगर यह देश, यह समाज उनका नहीं है तो फिर किनका है? बस इनका, सिर्फ इनका या फिर इनका? क्या इस भविष्य को खत्म होने दे कि समाज में समरसता नहीं है? नहीं, यह नहीं होने देंगे, यह बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, यह होने ही नहीं देंगे। हम हैं, हम भी हैं, हम भी तो हैं, हम भी आएंगे। हमारा भी तो दायित्व है मानव धर्म निभाना और हमारा कर्तव्य है इन बच्चों के भविष्य को संवारना। हम गढ़ेंगे एक नया भारत जिसमें साझेदारी होगी इन बच्चों की भी। आइए ऋषिकुल शाला के साथ इन बच्चों को ज्ञान दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि भविष्य वो भी हैं तो भविष्य ये भी हैं। जब बगिया एक है तो फूलों में फर्क क्यों? Sisters and brothers of America, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. आखिर में, I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. आश्रम के 10वें ज्ञान उत्सव में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। यह लाइनें 11 सितंबर को बोली गई, यद्यपि उसके बाद 5 और दिन थे, 15 तारीख, 19 तारीख, 20, 26 और 27 सितंबर तक
शिकागो में भारत का वो परचम लहरा रहा था जिसकी उस वक्त के भारत को आवश्यकता थी, और ऐसा करने वाले थे परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी। 10 वर्ष हो गए हैं आज इस उत्सव को मनाते हुए। इस उत्सव का नाम रखा ज्ञानोत्सव, और 10वें ज्ञानोत्सव में हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि आश्रम को आज जिनका साथ मिल रहा है वो हैं पद्म श्री प्रोफेसर JS राजपूत जी। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वह मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इसके साथ साथ मैं उन लोगों का भी स्वागत करता हूं जो देश विदेश से जुड़े हुए अतिथिगण हैं, ऋषिकुल शाला के शिक्षक हैं, ऋषिकुल शाला के सहयोगी वृंद हैं, ऋषिकुल शाला की जो रिसर्च टीम है, आश्रम परिवार के सभी लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज की बातचीत होगी, शिक्षकों के सामने जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर। ये बातचीत केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं है, क्योंकि जो चुनौतियां शिक्षकों के सामने हैं कमोबेश वही चुनौतियां परवरिश के सामने भी है, पेरेंट्स के सामने भी है। इसलिए जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पर, उन्हें भी बहुत ध्यान से आज का संभाषण सुनना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी शिक्षक होते हैं, अनौपचारिक शिक्षक होते हैं। इसलिए पद्म श्री प्रोफेसर राजपूत जी का वह जो संभाषण होगा वह उनके लिए भी बहुत काम का होगा। मैं प्रोफेसर राजपूत जी को गेम चेंजर मानता हूं एजुकेशन की फील्ड में। आपने एनसीटी के चेयरमैन के रूप में जो बीएड का स्ट्रक्चर बनाया वह अद्भुत था, और उससे देश को, उसकी शिक्षा को बहुत फायदा हुआ। जब आप एनसीईआरटी के चेयरमैन थे तो जो कोर्सेज की फील्ड में एक रेवोल्यूशन हुआ, एक भारत परक चिंतन के लिए जो एक क्रांति हुई, उसके लिए आपका नाम सदैव न केवल शिक्षक, न केवल विद्यार्थी, बल्कि भारत के लोग याद रखेंगे। जो फीलिंग ऑफ इंडियनेस की आई वो तभी आनी शुरू हुई जब एनसीईआरटी के पद पर आप सुशोभित हुए और आपने लगातार उस विषय में बोलना शुरू किया। बहुत सारे शिक्षकों में तब वह स्फूर्ति आई कि जो भारत का शिक्षण है, पेडागोजी है जो भारत की, वह कितनी काम की बात है, जो पूरी दुनिया को अभी तक पता ही नहीं थी, और हम उसके माध्यम से पूरी भारत की जनता को शिक्षित कर सकते हैं। आपका ये कंट्रीब्यूशन अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मान होता है किसी भी व्यक्ति का, पद्म श्री, वह आपको मिली। और उसके साथ साथ आपको यूनेस्को ने जो प्रेस्टिजियस जैन एमॉस कम्युनिस्ट मेडल होता है वह प्रदान किया, जो आपके लिए नहीं हमारे लिए भी सम्मान की बात है। जब हम चलना सीख रहे थे तब आपने चलना सिखाना शुरू कर दिया था। आप हमेशा याद रहेंगे शिक्षा जगत में, और आपकी एक एक बात मैं तो हमेशा से सुनता ही रहा हूं। आज बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जूम से जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ फेसबुक से जुड़ चुके हैं, देश विदेश से वह लोग जुड़े हुए हैं, हजारों वह लोग भी आपकी बात से आज लाभान्वित होंगे। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है मैं शेयर करना चाहूंगा सब लोगों के साथ। आपको महर्षि वेद व्यास सम्मान 2012 में मिला, और आपके तुरंत बाद
यह सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। और जब मैंने आपका नाम लिस्ट में देखा तो मुझे लगा कि कुछ अच्छी चीज मुझे मिलने जा रही है, नहीं तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था। सब लोगों से एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि विद्वान व्यक्ति सदा बहुत सिंपल होते हैं। उनकी सोच जितनी ऊंची होती है वह उतने ही सामान्य क्रिया के होते हैं, सामान्य कार्य वह, सामान्य बातचीत वह करते हैं। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और जिस व्यक्ति के पास इतने लिरल्स हो, इतने मॉडल्स हो, वो कितने सिंपल हो सकते हैं, ये प्रोफेसर राजपूत जी से जब आप मिलेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। मैं उनकी इन दोनों चीजों का कायल हूं। ऋषिकुल शाला एक सोच है जो अभी 2 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत की गई थी। ये वो सोच है जिसमें वो बच्चे जो समाज के अंतिम कतार में खड़े हुए हैं, उन बच्चों तक आश्रम के लोग पहुंचते हैं, उनको वहां वह पढ़ाते हैं। न केवल पढ़ाते हैं बल्कि जागरूक करते हैं। यूं तो 7 वर्षों से यह कार्य चल रहा है, लेकिन हमने इसको एक्सपेंड किया 2019 में, और जैसा कि अभी आपको कोऑर्डिनेटर जी ने बताया कि ये 17 क्षेत्रों में चल रहा है देश के, और इसमें 983 बच्चे जुड़े हुए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है यह एक समावेशी शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। इंक्लूसिव एजुकेशन इसको इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये क्लासरूम की बाउंड्री से दूर है। यह उनके साथ कहीं पर भी बैठकर शिक्षक चर्चा है। उनको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई सिखाई जाती हैं जो हेल्थ हाइजीन से सीधी संबंधित है, जो भारत से संबंधित है, समाज से संबंधित है, अपराध से दूर रहने से संबंधित है, और साथ ही साथ किस तरीके से हम उनको समाज के साथ और समाज को उनके साथ जोड़ते हैं, यह उसका एक अनुपम उदाहरण भी है। बहुत सारे लोग इसमें दिन रात काम करते हैं, रिसर्च टीम इसमें दिन रात काम करती है। विवेक टोली जो स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर हमने बनाई है, वह विवेक टोली उस दिन रात काम करती है। उसमें यह सबसे ज्यादा सुखद आश्चर्य है कि उसमें ज्यादातर लोग युवा हैं, बच्चे हैं, खुद जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो लोग हैं, और ये लोग इस कार्य को कर रहे हैं। और उन बच्चों को हम इसको समावेशी इसलिए भी कह रहे हैं कि हम केवल औपचारिक शिक्षा देकर नहीं छोड़ते, बल्कि उन बच्चों के साथ हम तब भी खड़े हुए जब कोरोना में वो और उनके परिवार परेशान हुए। जो कुछ बन पड़ा आश्रम परिवार के लोगों से वह सब ने मिलकर किया। तो मैं आश्रम के सभी लोगों को साधुवाद देता हूं, ऋषिकुल के सभी लोगों को साधुवाद देता हूं। विषय है न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड चैलेंजेस फॉर द टीचर्स। बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं अभी टीचर्स के साथ। आइटम नंबर 5 में जिस तरीके से टीचर्स की स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्वीकारा है और खुले दिल से सरकार ने यह स्वीकारा है कि टीचर्स को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और सरकार उसे इंश्योर करेगी। लेकिन यह केवल सरकार के इंश्योर करने से नहीं होगा, ये लोगों को भी इंश्योर करना होगा, ये टीचर्स को भी इंश्योर करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है, आगे विषय के जो जानकार हैं वही बताएंगे, श्री प्रोफेसर राजपूत जी, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में टीचिंग एक बेहद स्पेशलाइज्ड जॉब होने जा रही है। जॉब ये पहले भी स्पेशलाइज्ड थी, लेकिन इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस था, इसका जो प्रमोशन प्रोसेस था, वो थोड़ा लचर था।
अब वो स्ट्रांग हो जाएगा और वो लोग जो वास्तव में शिक्षक बनना चाहते हैं वो इस क्षेत्र में आएंगे। अभी तक जैसा सामान्यता होता है, सामान्यता कह रहा हूं, कि जिसको कुछ नहीं मिलता वो शिक्षक बन जाता है, ऐसा बोला जाता है, अब उस पर रोक लगेगी। शिक्षकों को अब समाज में जाकर समाज के लोगों के साथ, समुदाय के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं। केवल फॉर्मल क्लास लेके चले जाना अब पेडागोजी का हिस्सा नहीं रहेगा। एवरी टीचर विल हैव टू इंश्योर दैट आर द चिल्ड्रन लर्निंग रियली। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यद्यपि इसमें पेरेंट्स के डिजाइन्स को लेकर, सामुदायिक इंक्लूजन इन द स्कूल को लेकर, टीचर्स के एम्प्लॉयमेंट को लेकर, प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर अभी कुछ चिंताएं हैं। वह चिंताएं कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, ये हम सब लोग जानेंगे। तो आज का जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है और कैसे शिक्षकों को, बच्चों को तैयार करना है ये भी एक चुनौती है। कैसे अपनी जॉब में उन्हें खरा उतरना है ये भी एक चुनौती है और यही चुनौती परवरिश की भी है। तो इन्हीं विषयों पर अब मेरे ख्याल से बातचीत शुरू की जाए। इन्हीं विषयों को हम अच्छे से सीखें, समझें। इसके लिए मैं हृदय से निमंत्रण देता हूं। आप सभी लोग अपने अपने घरों पर बैठ के करतल ध्वनि से स्वागत कर सकते हैं पद्म श्री प्रोफेसर जे.एस. राजपूत जी का, जिन्हें पूरी दुनिया अपने शिक्षकों के लिए गाइड मानती है और हमारे लिए तो वह प्रेरणा स्रोत है ही है। प्रोफेसर राजपूत जी। आदरणीय गुरुजी और इस समाज से जुड़े हुए सभी लोग, अध्यापकगण, पालकगण और ऋषिकुल शाला से जुड़े हैं वो लोग जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, भारत के भविष्य के निर्माण में हिस्सेदारी कर रहे हैं, उन सभी को मैं भी प्रणाम करता हूं और अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि आज आपके कार्यक्रम में मैं जुड़ रहा हूं। ये 11 सितंबर हम लोग हमेशा बचपन से स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के संदर्भ में ही जानते थे, लेकिन बाद में विनोबा भावे जी से इसका जुड़ाव हुआ। जब मुझे पहली बार पता लगा और मैंने उनके शिक्षा पर विचार पढ़े तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद इस सदी में 2001 में जो 9/11 हुआ उसे सारी दुनिया ने देखा। विनोबा जी एक नारा देते थे, जय जगत, जो वसुधैव कुटुंबकम का ही कथन था, उसी को एक ढंग से वो कहते थे। स्वामी विवेकानंद ने जो अपना भाषण दिया था वो सारे विश्व को जोड़ने की क्षमता रखता था और उसका उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने क्या कहते हैं ना, लड़ाई जीती जाती है, लेकिन हमारा उद्देश्य, इस देश का उद्देश्य इज नॉट टू विन बट टू विन ओवर, हृदय जीत लेना होता है। उन्होंने लोगों का हृदय जीता था, हर प्रकार की विविधता वाले लोगों के समक्ष अपनी बात को, अपने देश की ज्ञान परंपरा को इस ढंग से रखा कि वे लोगों के हृदय में उतर गए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 2001 में दुनिया में ऐसा कुछ हुआ जो बांटने वाला था, जिसने 2 धड़ों में दुनिया को बांट दिया। लोगों की आंखें तो खुली उसने, लेकिन रास्ता निकालने के लिए कोई सहमति नहीं बन पाई विश्व भर में। और संभवतः वही एक समस्या है, सारे विश्व के सामने समस्या एक ही है कि कैसे सभी लोग अपनी अपनी मान्यताओं और विविधताओं के साथ शांति पूर्वक, सहयोग पूर्वक और सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते। विश्व के सामने यही बड़ी समस्या है और इसका समाधान कहाँ से आएगा? समाधान आएगा सजग, सतर्क, उन बुद्धिजीवियों से, उन अध्यापकों से जो भविष्य के निर्माण में ही अपना जीवन लगाते हैं।
महात्मा गांधी से एक बार किसी ने पूछा था, जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी तब पूछा था कि देश के सामने आप किस समस्या को सबसे बड़ा मानते हैं, सबसे विकट मानते हैं। अब उस समय का आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, छुआछूत को लेकर के गांधी जी प्रयासशील थे, वे विभिन्न धर्मों में, पंथों में समन्वय स्थापित करने में लगे हुए थे, हिंसा समाप्त करने में लगे हुए थे, अविश्वास समाप्त करने में लगे हुए थे, जाति प्रथा समाप्त करने में लगे थे। तो सभी की अपेक्षा थी कि उनका जो उत्तर होगा इन्हीं सब के आसपास होगा। मगर उनका उत्तर जो था वो आज भी आपको आश्चर्य में डाल देगा। उत्तर था, आप पूछ रहे हैं कि देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम बिफोर द नेशन इज carelessness of the intellectuals. वे लोग जो जानकार हैं, जो समर्थ हैं, जो शिक्षित हैं, जो देश से परिचित हैं, वे विरक्त हैं, अपने में सिमट गए हैं, औरों के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या थी। आज से 80-90 वर्ष पहले ये बात कही गई थी। और यदि ऐसा न होता, यदि इट वाज नॉट द carelessness ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, तो निश्चित रूप से 2001 का 9/11 नहीं होता, अगर विश्व उस दिशा में गया होता। कुल मिलाकर के जहां पर भी कोई कमी होती है, कोई घटना दुर्घटना होती है, तो लोग शिक्षा की ओर देखते हैं कि क्या शिक्षा में कोई कमी रह गई, क्या व्यक्तित्व विकास में कोई कमी रह गई। और वहां पर बहुत सी बातें उभरती हैं। जब श्रद्धेय पवन जी ने मुझे कहा बोलने के लिए और विषय बताया, तो मैंने सोचा कि नई शिक्षा नीति के सामने जितनी भी चुनौतियां हैं, अध्यापक के सामने भी उतनी ही चुनौतियां हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना अध्यापकों के क्रियान्वित की जा सके या बिना उनके सहयोग के प्राप्त की जा सके। आप इसे ज्ञानोत्सव करें। मुख्य विषय में जाने के पहले मुझे बैठे बैठे यहाँ पर एक चीज याद आई है कि हमारे यहाँ तो गीता में कहा गया है कि ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं, लेकिन समय के साथ साथ इसको स्वीकार करने में सभी सहमत है। सब दुनिया में हर जगह जाते हैं। वी आर ऑल इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज। किसी भी सभ्य समाज में हम आगे तभी बढ़ते हैं जब हमारी ज्ञानार्जन की परंपरा सुदृढ़ और सशक्त होती है। और भारत में हमें इस बात का गर्व है कि हमारी ज्ञानार्जन की परंपरा बहुत प्राचीन समय से बड़ी ही सशक्त रही है, विस्तृत रही है, और उसने विश्व को बहुत कुछ दिया हुआ है। ये हम अपनी विरासत में सोच सकते हैं और उसके संबंध में थोड़ी बात और भी करेंगे। लेकिन मैंने बर्ट्रैंड रसल का एक कथन पढ़ा। बहुत बड़े विचारक थे, बहुत लोग उनका नाम जानते हैं। उन्होंने लिखा कि अगर मानवता केवल ज्ञान के पीछे पड़ी रही तो नष्ट हो जाएगी। पढ़कर देखिए कितना अचंभे की बात लिखती है। अगर ज्ञान 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 ही पढ़ा तो नष्ट हो जाएगी। उसे बुद्धि की तरफ जाना पड़ेगा, उसे विवेक सीखना पड़ेगा। और मैं प्रयास कर रहा था कि मैं इसको कैसे समझूं, इसको उदाहरण कैसे बनाऊं। तो मुझे, क्योंकि मैं भौतिक शास्त्र पढ़ाता था किसी समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो मुझे एक घटना याद आई कि 1945 में लॉस अलामोस में जब पहली बार परमाणु बम का परीक्षण विस्फोट हुआ, तो उस समय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अन्य जो विज्ञान का कहिए तो विज्ञान का जो चरम उत्कर्ष था, उससे बढ़िया ऊंचा ज्ञान कहीं था ही नहीं। विज्ञान अपने चरम पे था। एटम की ऊर्जा को हम लोगों ने नियंत्रित कर लिया था, वैज्ञानिकों ने। और वैज्ञानिक उस प्रयोग के बाद, जहां पर ये बहुत प्रसिद्ध गीता का स्मरण किया गया था, ब्राइटर देन 1000 सन्स, जिसके नाम से एक पुस्तक भी उस समय लिखी गई, तो उस समय ज्ञान चरम उत्कर्ष पे था। वैज्ञानिक ये सोच रहे थे कि इस ज्ञान का उपयोग में मानव हित में कैसे करेंगे, कैसे क्लीन एनर्जी आएगी, कैसे मेडिकल साइंसेज में इसका उपयोग होगा, और मनुष्य की कितनी समस्याओं के समाधान में हम सफल होंगे। जब वैज्ञानिक ये सोच रहे थे तो सत्ता वाले क्या सोच रहे थे? वे हिरोशिमा सोच रहे थे, वे नागासाकी सोच रहे थे, और उन्होंने उस ज्ञान का उपयोग हिरोशिमा नागासाकी में किया। क्यों किया? उन्हें कुछ और चाहिए था। ज्ञान था
बुद्धि और विवेक नहीं था। मनुष्य के इतिहास में क्रूरतम घटना मनुष्य के द्वारा की गई, मनुष्यों पर की गई, यदि ज्ञान के साथ अन्य तत्व न हो, यदि मनुष्य केवल शिक्षा में ज्ञान ही प्राप्त करता रहे, उसके व्यक्तित्व का विकास न हो, उसके चरित्र का विकास न हो, तो निश्चित रूप से आपका कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा का अर्थ केवल चरित्र निर्माण है, चरित्र निर्माण ही मुख्य उद्देश्य है, उसी की तरफ बढ़ना चाहिए। और इस पे कितनी ही बातें और मैं कह सकता हूँ जो मुझे लगता है कि आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर उतना आवश्यक नहीं होगा। मगर ये बात आप भी विचार में रखिए कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान की ही बात करता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है। विनोबा जी की बात आई तो विनोबा जी ने कहा, उस समय नई तालीम पर अपने विचार किए थे, जय जगत की संकल्पना उनकी थी। जब वे अपना कार्य कर रहे थे, सारे देश में भूदान के लिए घूम रहे थे, तब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे। उस समय उनको देखने का मौका मिला, थोड़ा उनकी कुछ पुस्तकें पढ़ने का मौका मिला, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो हर अध्यापक को पता होनी चाहिए, मैंने तो पहले देखी थी। वो कहते हैं, मुझसे अगर कोई पूछेगा कि बच्चों की तालीम का तत्व क्या है, बेसिस क्या है, मतलब आधार क्या है, तत्व क्या है, तो थोड़े में मैं कहूंगा कि तालीम देने वाले शिक्षक को बच्चे बनना है और तालीम लेने वाले बच्चे को बड़ा बनना है। कितने अच्छे ढंग से बात कही गई है कि अध्यापक को बच्चों के स्तर पर आना है और बच्चों को अध्यापक के ऊपर मतलब आगे बढ़ना है, हमें वहां पहुंचना है। ये कितनी मनोवैज्ञानिक और संवेदनात्मक स्तर पर गहन बात इसमें छिपी हुई है कि हर अध्यापक को बच्चे को समझने का प्रयास करना चाहिए, और नहीं समझेगा तो निश्चित रूप से अपना कर्तव्य ही नहीं कर पाएगा, तो नई चुनौतियों को कैसे स्वीकार करेगा। मुझे उनका ये कथन बहुत ही अच्छा लगता है। और उन्होंने एक चीज और कही थी कि मैं नई तालीम, उस समय शब्द इस्तेमाल होता था, उसको नित्य नई तालीम कहता हूँ। आज जो सीखा जा रहा है अगले दिन बदल जाएगा। और एक उदाहरण भी उन्होंने दिया कि जैसे नदी, तो नदी रोज रहती है लेकिन उसका पानी बदलता रहता है, प्रतिदिन नया हो जाता है जो आपके सामने होता है। इसी तरह अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध भी प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है और स्वच्छ होता रहता है, निर्मल होता रहता है। एक दूसरे में एक छोटा होने का प्रयास करता रहता है, दूसरा बड़ा होने का प्रयास करता रहता है। और यहाँ पर अध्यापक और बच्चे के बीच के संबंध के बीच में तो एक संवेदनात्मक डोर होती है, वो भी मुझे दिखाई देती है। नई शिक्षा नीति के संबंध में इस समय सारे देश में चर्चा हो रही है और ये बहुत अच्छी बात। इसके लिए 2 समितियां बनी थी। पहली एक समिति श्री टी.एस.आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, जिसमें मैं भी एक सदस्य था, और दूसरी श्री कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में बनी, जिससे मैं संपर्क में रहा। लेकिन जो अनुभव इन पिछले 4 सालों में हुआ है वो अद्भुत था। कितने ही लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी राय दी कि शिक्षा में क्या परिवर्तन होने चाहिए। और कुछ विचार सुनकर को ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति हैं, बच्चों के अनुभव के आधार पर लिख रहे हैं, मगर मनोवैज्ञानिक और ज्ञान के स्तर पर कितनी गहराई की बातें लिख रही हैं। इस कमेटी के सामने समस्या ये थी कि इस सारी चीजों को समाहित कैसे किया जाए। लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपना काम किया। बड़ी देर लगी, 4 वर्ष लगे, मगर वो यहाँ पहुंचे। और अंततः आप देखेंगे कि उसमें सारा तत्व, जैसे अभी गुरुजी ने कहा, अध्यापकों पर ही आके सिमटेगा। मैंने अभी कुछ लेख भी लिखे और मैंने यही कहा भी है बार बार कि पहला देश का कर्तव्य है, मैं कह रहा हूँ देश का पहला कर्तव्य है कि वो अपने अध्यापकों पर विश्वास करे। करीब 35 साल पहले मैंने एक लेख लिखा था, ट्रस्ट द टीचर। तो अध्यापकों के संगठन में उसको काफी पढ़ा और उस पर चर्चा हुई। ट्रस्ट द टीचर, आपके सामने और कोई विकल्प है ही नहीं। अध्यापकों की आलोचना करने से देश को कुछ मिलने वाला नहीं। अध्यापकों को समर्थ बनाना देश का उत्तरदायित्व है, और केवल सरकार का नहीं है, समाज का भी। और जब आप अध्यापक को कार्य करने के लिए आवश्यक वातावरण देंगे
आवश्यक प्रेरणा देंगे, उसे अपने को आगे बढ़ाने के लिए व्यवहारिक रूप में सशक्त बनने के लिए अवसर मिलेंगे, तो निश्चित रूप से उसके अंदर ये भावना आएगी कि मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे सामने चुनौती क्या है। मैं अध्यापक रहा हूँ, मैंने धीरे धीरे सीखा और मैं चाहता हूँ कि सब लोग सीखें। मैं इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ, मैंने देश के निर्माण में हिस्सा लिया। ऋषिकुल शाला चला करके पवन सिन्हा गुरुजी देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जो आपने पहले दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा उसे देखना। उस भविष्य में जो बड़ी बड़ी खाइयां हैं, उन खाइयों को पाटने का प्रयास जो कर रहा है वह इतना बड़ा कार्य कर रहा है कि जिसके लिए मैं एक बात उदाहरण दूंगा, वो भी गांधी जी से संबंधित है। उन्होंने लिखा कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि तुम एक व्यक्ति का जीवन बचा सकते हो या संवार सकते हो, दोनों शब्द हैं, बचा सकते हो या संवार सकते हो, तो तुम्हारा जीवन सफल माना जाएगा। एक व्यक्ति, हर माँ ऐसा करती। आप सोचिए, अगर आप 10 का संवार लें तो, आप 100 का कर ले तो, और एक अध्यापक हजारों का जीवन संवार सकता है। मैंने भी अनेकों का किया, मेरे अध्यापकों ने मेरा किया, और वो केवल कक्षा के अंदर नहीं होता है। मैं एक उदाहरण बार बार देता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरे फिजिक्स के प्रोफेसर थे राजेंद्र सिंह जी, जिन्हें देश में बहुत से लोग रजू भैया के नाम से जानते हैं। उनका एक ही व्यक्ति ने उनके साथ रिसर्च की थी और वो मैं था। डॉक्टरेट फिजिक्स ने उनके साथ की थी। अब चरित्र निर्माण और मूल्यों की शिक्षा का एक उदाहरण है जो मैं आपको अपने जीवन से दे रहा हूं, और जो हमारे बहुत से अध्यापक और माता पिता रोज करते हैं, उसी को सुदृढ़ करने के लिए मैं कह रहा हूं कि मैं 1962 में एमएससी का विद्यार्थी था, पूरा कर रहा था। वो मेरे सामने से आ रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गैलरी में। हम 3-4 लोग खड़े थे, तो हम एक किनारे हो गए और जैसे हमें हो जाना चाहिए था। वो सामने आए, उन्होंने बड़े मतलब मेरी तरफ ध्यान देकर कहा और मेरी कमीज पर ऐसे हाथ रखा, नई है, सबके लिए बनी है घर में, और चले गए। कितना छोटा सा वाक्य है। जीवन के उस मोड़ पर जब मैं करीब 18 साल का था, 18 का ही होगा, वो वाक्य मेरे मन में बैठ गया। ये फिजिक्स नहीं थी जो मुझे पढ़ाते थे, ये जीवन जीने की कला थी जो उन्होंने सिखा दी। और उसके बाद आज तक मैं अगर कोई नई कमीज खरीदता हूं या कोई मेरे लिए लाता है, तो मुझे यही सेंटेंस वाक्य याद आता है, घर में सबके लिए बना है। एक वाक्य, ये चीजें हैं जो आपके जीवन को बदल देती हैं। और अध्यापक के रूप में आप, यही चुनौती, इसी की अपेक्षा नई शिक्षा नीति में आपसे की गई है। और इसमें क्या होना चाहिए, सच्ची शिक्षा क्या है, हिंद स्वराज में इसका एक वर्णन है, और वर्णन बड़ा ही मार्मिक है, और वो सारी बात कह देता है। हम करने क्या जा रहे हैं अध्यापक के रूप में। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसके शरीर को ऐसी आदत डाली गई है कि वह उसके बस में रहता है। मेरा शरीर मेरे बस में रहता है। इसमें बहुत सी चीज जुड़ेगी जो मैं अभी नहीं कहूंगा। जिसका शरीर चैन से और आसानी से सौंपा हुआ काम करता है, उस आदमी की शिक्षा सही है जिसकी बुद्धि शुद्ध, शांत और न्यायदर्शी। अब आप सोचिए, चुनौती अध्यापक के सामने है। आपको हर बच्चे की बुद्धि को वो दिशा देनी है जो शांत, शुद्ध और न्यायदर्शी है, जिसका मन कुदरती कानूनों से भरा है, जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, जिसके मन में भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हैं, जिसे नीच कामों से नफरत है और दूसरे को अपने जैसा मानता है। शिक्षा नीति में परिवर्तन बहुत होंगे। नई संरचना बनी है। 3 साल के बाद के बच्चों को की तरफ ध्यान दिया जाएगा। ये स्वीकार किया गया कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, 8 वर्ष तक सबसे अधिक मस्तिष्क का विकास होता है। उसके बाद और भी कई ऐसी चीजें हैं जो होती रहेंगी। बच्चों को अपने मन के विषय पढ़ने का अवसर मिलेगा।
जब वे उच्च शिक्षा में जाएंगे तो उन्हें शोध के अवसर मिलेंगे, उन्हें बंधनों से मुक्त मिलेगी। अधिकांश जहाँ पर है उनका पाठ्यक्रम कम किया जाएगा, व्यवसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा को मिला दिया जाएगा, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर का भेद समाप्त कर दिया जाएगा। बच्चों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ज्ञान के उपयोग के संबंध में होंगे। बहुत अच्छा है ये सब कुछ, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये सब करेगा कौन? करेगा अध्यापक। उसको हर चीज को समझना पड़ेगा। यदि आप 3 साल से लेकर 7-8 साल तक बच्चे को के विकास को सबसे अच्छा मानते हैं, तो ये उस अध्यापक को पता होना चाहिए कि वह उसकी रुचियों का ध्यान कैसे करे। वो कैसे जाने कि ये बच्चा आगे चलकर इंजीनियर नहीं बनेगा, ये तो कवि बनेगा, ये तो दार्शनिक बन सकता है, ये संगीतकार बन सकता है। ये अध्यापक ही पता कर सकता है। मैंने सोवियत संघ में, मुझे वो एक स्कूल में ले गए, उन्होंने कहा ये म्यूजिक स्कूल है। तो मैंने कहा म्यूजिक स्कूल का क्या अर्थ है? वहां बच्चे सब कुछ वैसा ही पढ़ते थे। ये पुरानी बात है, जब यूएसएसआर था, बच्चे सारा पाठ्यक्रम पढ़ते थे, लेकिन उन्हीं बच्चों को वहां उस स्कूल में लाया गया था जो विशेष रूप से संगीत में रुचि लेते थे। उन्हें सामान्य के बाद हर प्रकार का प्रयोग संगीत में करने के लिए प्रबंध किया जाता था। जैसे देश में कहीं कहीं स्पोर्ट्स स्कूल यहाँ भी बने थे, वहां पर फिजिक्स स्कूल होता था, केमिस्ट्री स्कूल होता था। तो इस नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात है कि बच्चे की रुचि, अगर हर बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिल जाए तो सोचिए देश की बौद्धिक संपदा कितना बढ़ जाएगी। चुनौती किसके सामने है? अध्यापक के सामने। अब मूल्यांकन की बात आई तो ये नई नीति कहती है कि मूल्यांकन ऐसा होगा कि बच्चा स्वयं भी अपना मूल्यांकन करेगा। अब बच्चा कैसे करेगा, ये कौन सिखाएगा? अध्यापक सिखाएगा। उसके साथी उसका मूल्यांकन करेंगे और इससे बच्चे को और उसके साथियों को कैसी प्रेरणा मिलेगी? क्या केवल हंसी मजाक की प्रेरणा मिलेगी या ये उद्देश्य की तरफ उनको ले जाएगी? सिखाएगा कौन? अध्यापक ही सिखाएगा। तो आप अगर अध्यापक की चुनौतियों को मैं 4 हिस्सों में आपके सामने रख सकता हूँ। 4 ढंग से हम इसको कह सकते हैं। नई शिक्षा नीति में हम प्रश्न पूछे और पहला प्रश्न तो बच्चे के लिए, किसे पढ़ाना है? तो पहला प्रश्न क्या है? किसको पढ़ाना है? बच्चे की समझ कितनी है अध्यापक? इसके लिए 2 एक उदाहरण देता हूँ। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, उनका तो स्कूल का जीवन बहुत ही अच्छा नहीं था, कष्ट हुआ था उन्हें, और वो उन्होंने लिखा कि मैं वो एक अध्यापक को देखकर मुझे दिखाई देता था केन पर्सोनिफाइड, मतलब जैसे बेत चला रहा है पिटाई वाला। आप समझ सकते हैं कि मन में कैसे। और उसी से शिक्षा के बंधनों को तोड़ने की जो इच्छा उनके अंदर जागृत हुई, उससे शांति निकेतन बना, शिक्षा का नया दर्शन बना, नई संस्थाओं के लिए नई दृष्टि उन्होंने विकसित कर दी। जो इस समय अध्यापकों के लिए और माता पिता के लिए भी सबसे बड़ी बात है, ये है कि उन्होंने 2 बातें कही। दर्शन तो उनका बहुत बड़ा है, लेकिन अपनी समझ के लिए उन्होंने कहा कि हर बच्चे को ईश्वर 2 वरदान देता है। तो किसी भी आर्थिक दृष्टि के परिवार में पैदा हो, ये वरदान समान है सबके लिए, किसी को न कम किसी को ज्यादा। तो क्या है? पहला है पावर ऑफ आइडियाज। हर बच्चे के अंदर विचार की शक्ति होती है, वैचारिकता। चाहे वो छोटा हो, वो सोचता है, वो खिलौना लेता है, देखता है, करता है, चलाता है, फिर तोड़ देगी कोशिश करता है, फिर रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है। इतनी ही बातें तो कई ढंग से वैचारिक पावर ऑफ आइडियाज ये बढ़ती जाती है। और दूसरा पावर ऑफ इमेजिनेशन। जिस बच्चे के पास पावर ऑफ आइडियाज और पावर ऑफ इमेजिनेशन है, गुरुदेव टैगोर कहते थे, हमारी शिक्षा व्यवस्था या माता पिता के दबाव लगातार इनको कुंठित करते रहते हैं। नई शिक्षा प्रणाली इसको ध्यान देती है और इसीलिए इतनी सारी संस्कृतियां हैं कि मन का विषय पढ़े, उसकी जिधर इच्छा हो उधर ही ले जाया जाए, वगैरह वगैरह। अब किसे पढ़ाया जाए में आप इस बात का ध्यान दीजिए, और कौन उसके वैचारिकता को बढ़ाएगा?
कौन उसकी कल्पनाशीलता को बढ़ाएगा? अध्यापक। कैसे बढ़ाएगा? तो ये 2 शब्द और हैं, 4 शब्द मैं यहाँ पर छोड़ जाऊंगा आपके लिए विचार करने के लिए। आइडियाज, इमेजिनेशन, उससे क्या होगा? क्यूरियोसिटी। बच्चे की क्यूरियोसिटी घर में हर माता पिता देखता है और अक्सर उनके प्रश्नों के उत्तर हम बड़े मन से नहीं देते, लोग थक जाते हैं, कहते जो भी, लेकिन जिज्ञासा को बढ़ावा देना अध्यापक के सामने चुनौती तो होती है, माता पिता के सामने भी है। और इससे चौथा निकलता है सृजनात्मक। जो मैं उदाहरण दे रहा था खिलौने का, वो जब बनाता है तो सृजनात्मकता उसमें आती है। अगर इन 4 चीजों को नई शिक्षा प्रणाली में कुंठित न किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत कुछ आगे किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूछिए जो हर अध्यापक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चुनौती होगा, क्या पढ़ाया जाए? क्या पढ़ाया जाए? करिकुलम, पाठ्यक्रम। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका किसी भी देश के लिए, उसकी बौद्धिक संपदा के लिए, नवाचार के लिए, शोध के लिए यहाँ पर बहुत ही अधिक गहराई से तैयारी करने की आवश्यकता होती है। हम नालंदा की बात करें, तक्षशिला की बात करें, वहाँ कितने विषय पढ़ाए जाते थे, कितने ऐसे विषय जिनका आपस में कोई संबंध दिखाई नहीं देता था, बहुत मेहनत करने पे दिखाई देता था, वही पढ़ाए जाते थे। आज हम क्या करते थे, हम किसी को बायोलॉजी में चला गया, लिबरल साइंस में चला गया, कोई फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में चला गया, उसके बाद उसको संगीत जाने की तो जरूरत ही नहीं। वो सब बंधन अब तोड़े जा रहे हैं। लेकिन जो मुख्य चर्चा होगी वो ये होगी अब जो पढ़ाया जाए वो हमारे भारत के विद्यार्थियों को भारत से जोड़े। Should link Indians to India, its culture, history and heritage. The essence of the British policy in India was to subjugate Indians. No, to subjugate India, Indians must be dealing from India. Or simple कहें तो Indians must be dealing from India. And how can you delink an entire nation, entire population from its history, culture and heritage? Destroy their education system. What they did, they destroyed our education system. And they put up an alternative system which appeared very lucrative. It would need government jobs. If you go to an English school, you will become a clerk or some small functionary. What they needed from here. And you must appreciate their capacity to plan and for the strategies of futuristic planning. आज भी हम सीख सकते हैं कि मैकाले ने ऐसी नीति बनाई कि मैकाले को गए सैकड़ों वर्ष हो गए, मगर हम भारत के लोग उससे निकल नहीं पाए। हम आज भी वही पढ़ा रहे हैं। हम विज्ञान की बात में उतना महत्व नहीं है, लेकिन समाज विज्ञान में, इतिहास में, संस्कृत में हम वही पढ़ा रहे हैं। दर्शन में आप आज भी भारत के अनेक विश्वविद्यालयों के दर्शन शास्त्र की किताबें देखिए तो आपको वहां पर कोई भारतीय मिलेगा ही नहीं। आपको सब बाहर के लोगों को पढ़ाया जाएगा और आपके मन में कॉन्शियस सबकॉन्शियस में ये बात बैठ जाएगी कि दर्शन शास्त्र में अगर किसी ने योगदान किया है तो पश्चिम ने ही किया है। विज्ञान में अगर कोई योगदान हुआ तो पश्चिम में ही हुआ है। और आपको ऐसे बहुत से वैज्ञानिक मिल जाएंगे जो भारत की प्राचीन वैज्ञानिक आविष्कारों को, खोजों को की चर्चा करने पर आपसे हंसी उड़ाएंगे। ये कहेंगे अरे ये सब तो हम बहुत सुन चुके हैं कि हवाई जहाज होता था, ये होता था, या हम समुद्री जहाज बनाते थे, पहले हमें आता था। इस तरह की चर्चा आज भी होती है और ये दुर्भाग्य की बात है कि वो प्रबुद्ध समाज के अंदर होती है। तो अब आप क्या पढ़ाएंगे? भवन सोना जी ने जिक्र किया, हम लोगों ने सन 2000 में प्रयास किया था कि हम भारत के लोगों को भारत की संस्कृति से जोड़ें, जो उसकी विशेषताएं हैं उनसे जोड़ें, और हम आधुनिक ज्ञान को बंद नहीं करेंगे। जैसे कहा गया कि हम अपने दरवाजे खिड़कियां खुली रखेंगे और हम हर नए विचार को, ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन हमने जो ज्ञान प्राप्त किया था, जो हमारा आधार है, जिस पर हमारी संस्कृति खड़ी है, जिस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं,
उसे हम भूलेंगे नहीं। हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि विश्व में एक ही संस्कृति है, एक ही भाषा, एक ही संस्कृत सर्वश्रेष्ठ है और सबको उसी में चले जाना चाहिए। हम वो सभ्यता नहीं है। हम विविधता को अंतर्मन से स्वीकार करते हैं। हम ये मानते हैं कि सारे विश्व के लोगों में एक मूलभूत एकता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कोई दूसरा माने या न माने, हम तो उसको अपना मानते हैं। तो ये जो हमारे सामने समस्या थी कि हमने अपनी संस्कृति के इन मूल तत्वों को भुला दिया। अब क्या पढ़ाया जाए में आप देखिए, हमारे यहाँ कितनी चीजें ऐसी थी जो आज के विश्व में दोबारा लोग ढूंढ रहे हैं। आज क्लाइमेट समिट होती है, आज इन्वायरमेंटल पे बात होती है, आज पोल्यूशन की बात होती है। यूनेस्को 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो हमारी संस्कृति में बहुत पहले स्वीकार कर ली गई थी। आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी इशू है, पर तब तक आप सब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सब इससे एक निवेदन है कि आप सब अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, जो हम बाद में क्वेश्चन राउंड में लेंगे। तो जब मैं इन 3 ऋणों की बात कर रहा था तो मैं केवल एक पे थोड़ी चर्चा करूंगा, जो देव ऋण की बात है कि मनुष्य और प्रकृति सोचने की क्षमता किसके पास, सोचने की क्षमता केवल मनुष्य के पास है। ये उसका कर्तव्य है, ये उसी का कर्तव्य है कि वो अपने और प्रकृति के संबंधों की संवेदनशील डोर को बनाए रखे। हमारी सभ्यता में जो हर पशु पक्षी पेड़ पौधे को इतना महत्व दिया गया, उसे दैवत्व प्रदान कर दिया, उसे देवताओं से जोड़ दिया। आज भी गांव में जाइए तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी, अनुभवी अनपढ़ व्यक्ति, गृहिणी ये जानती है कि कौन सा पौधा घर के अंदर लगेगा, कौन सा घर के बाहर लगेगा, कौन सा पेड़ सड़क के बाहर लगेगा और क्यों लगेगा। क्यों ऐसी परंपरा बनी कि जब यज्ञ के लिए कोई व्यक्ति लकड़ी काटने जाता है किसी पुराने वृक्ष की, तो उसके सामने पहले प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हें काट रहा हूं, पवित्र काम के लिए काट रहा हूं, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि मैं इतने पेड़ और लगाऊंगा। अगर हमने उसको माना होता, उसकी वैज्ञानिकता को समझा होता, अगर हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होता, अगर हम गौरवपूर्ण मानते उसे, तो आज मेरे देश में कम से कम हवा जहरीली नहीं होती, पेड़ों पौधों की कमी नहीं होती, मेरे जंगल कम नहीं हो गए होते, मेरी नदियां प्रदूषित नहीं हो गई होती, मेरे यहाँ पानी पीने की समस्या नहीं होती, मेरे तालाब समाप्त नहीं हो गए। सुनील भैया का जवाब देना चाहूंगी। ऋषिकुल शाला में 983 बच्चे हैं भैया, अभी तक मार्च तक 983 थे। कोविड के चक्कर में हमारे 5-6 सेंटर्स अभी ऑनगोइंग है जो अभी खुलने वाले हैं। करुणेश मिश्रा जी ने भी एक सवाल पूछा था कि ऋषिकुल शाला लखनऊ में है। हाँ, ऋषिकुल शाला भैया लखनऊ में है, डालीगंज में है, और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं वेबिनार के बाद, तो आप भी जुड़ सकते हैं। मोस्ट वेलकम ऋषिकुल शाला के लिए। एक रिक्वेस्ट मैं और सारे पार्टिसिपेंट से करना चाहूंगी, ऋषिकुल वेबिनार का लिंक जलेगा अटेंडेंस का। आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप अपना अटेंडेंस का लिंक कंप्लीट नेम एंड डिटेल्स भर दीजिए। अब रुकिए थोड़ा, आई थिंक सर हैज जॉइंड बैक। यस सर। अब हम दूसरी चीज पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि हम क्या पढ़ाएं, और वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप तभी पढ़ा सकते हैं जब आप इस आधारभूत को जानते हो, तभी उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा नीति ने इन सब पर ध्यान दिया है। पहली चीज, आप प्रारंभिक वर्षों में पढ़ाना बहुत कठिन होगा, और इस नीति में उसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं थोड़ा श्री अरविंदो को याद कर देता हूँ, जो आप लोग परिचित होंगे और थोड़ा उसका और अध्ययन करेंगे। मैं बहुत 3 वाक्य उनके आपके सामने रखता हूँ। पहला है फ्रॉम नियर टू फार। जो बच्चा जानता है उससे आगे बढ़िए। जानता क्या है? घर में माता पिता के साथ घर की भाषा में जो सीखा है वही जानता है, और उसी को आगे बढ़ाइए। अगर आप स्कूल में पहले दिन से ही उसको दूसरी भाषा में पढ़ाएंगे जो उसकी मातृभाषा नहीं है, तो उसके ऊपर एक क्रूरता होगी।
ये विश्व भर में माना जाता है। विश्व का हर विकसित देश अपने बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा देता है और इसके कारण किसी की प्रगति रुकी नहीं है। वे अन्य भाषाएं पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ते। किसी भी बड़े देश ने ऐसा किया हो, उदाहरण बहुत से दिए जा सकते हैं, क्योंकि बच्चा तभी कर पाएगा। सारी दुनिया ये माना जाता है कि प्राथमिक शालाओं में, प्रारंभिक शालाओं में, प्री स्कूल एजुकेशन में अधिकांश महिलाओं को ही अध्यापक होना चाहिए, क्योंकि जिस संवेदनशीलता की अपेक्षा वो अपनी माँ से करता है, अपने परिवार से करता है, उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए किसी महिला का होना ज्यादा अच्छा होगा। अध्यापक भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, मनुष्य पुरुष भी कर सकता है, लेकिन अपेक्षा ये है कि वो ज्यादा अच्छे। इसीलिए आप देखेंगे कि विश्व भर में ऐसा है। जब मैं मंत्रालय में स्वयं सचिव था तो उन्होंने, हम लोगों ने एक योजना की थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसमें कहा कि कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए और दूसरा अध्यापक जहाँ नहीं है वो केंद्र सरकार सहायता करेगी। तो एक पत्र लिखा गया था जो मुझे अच्छी तरह याद है कि दूसरा अध्यापक महिला होनी चाहिए, और उसका बहुत प्रभाव पड़ा। जब तक अगले 5-6 साल में भारत में भी महिलाओं की प्रतिशत बढ़ गया था, अब तो बहुत अच्छा हो गया। एक दूसरा वाक्य है जो हर अध्यापक को अब अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा, वो भी श्री अरविंदो का है और उसे समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो वाक्य है, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, नथिंग कैन बी टॉट। फिर हम कर क्या रहे? हम जो कर रहे हैं उसे स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। जो है हमारे अंदर उसी को हम खोजने में मदद कर रहे हैं। बच्चा क्या कर रहा है? वो खोज रहा है, उसके लिए हर चीज डिस्कवरी है। हर नई चीज जो जानता है वो उसने ऑलमोस्ट ये डिस्कवर्ड इट। आप उसमें सहायता कर सकते हैं। यू कैन असिस्ट इन मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन दैट इज ऑलरेडी देयर, लेकिन आप कुछ थोप नहीं सकते, इसके अलावा कुछ नहीं है, बिकॉज द परफेक्शन इज ऑलरेडी इन मैन। ये दूसरा वाक्य था। और तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है, द माइंड मस्ट बी कंसल्टेड इन इट्स डेवलपमेंट। कितना महत्वपूर्ण वाक्य है। देखिए, हर बच्चे कहते हैं मस्तिष्क, जिस मस्तिष्क को आप सोच रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, वो कहाँ पर है, कैसा है, उसकी रुचि क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो कौन सा प्रश्न पूछना चाहता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तभी आप उसके साथ साथ बढ़ सकते हैं। वही बात जो विनोद जी ने कही कि हर अध्यापक को बच्चा बनना पड़ता है और बच्चे को बड़ा बनना होता है। तो ये 3 वाक्य हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे नई शिक्षा नीति में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए। और इनको जब हम आगे बढ़ा लेंगे तो निश्चित रूप से कुछ और चीजें भी आएंगी जो आज के उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को ने, आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि 1998, 99, 1997 से शुरू हुआ, सारी दुनिया में 2K एक शब्द आता था, 2K, 21वीं शताब्दी की स्थिति क्या होगी। और हर विभाग के लोग बहुत बड़ी योजनाएं बना रहे थे, कमीशन बना रहे थे कि 21वीं शताब्दी में मेरे विभाग की, मेरे सेक्टर की स्थिति क्या होगी। यूनेस्को ने भी एक कमीशन बनाया, बड़ा मशहूर कमीशन है, डेलोस कमीशन कहलाता है। और डेलोस कमीशन का काम था कि वैश्विक स्तर पर शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, यानी शिक्षा में चुनौतियां क्या होंगी। उसमें एक चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण अध्यापकों की चुनौतियों पर भी है। और वो सारे विश्व भर से 11 इसके एक्सपर्ट थे। हमारे भारत से डॉक्टर करण सिंह उसके सदस्य थे। तो उन लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट का जो शीर्षक है, वो शीर्षक आप सुनते हैं तो आपको तुरंत स्वामी विवेकानंद याद आते हैं। जब भी मैंने उनका वाक्य दोहराया है तो शीर्षक उस रिपोर्ट का है, लर्निंग द ट्रेजर विदिन। सारा सीखना जो है आपके अंदर है, सब कुछ आपके व्यक्ति के अंदर, यानी देयर आर नो लिमिट्स टू लर्निंग। कोई भी व्यक्ति कितना ही आगे बढ़ सकता है ज्ञान में, विज्ञान में और सहज ज्ञान में। तो वो रिपोर्ट 1996 में जिनेवा में जब रिलीज हुई तो मैं वहां मौजूद था और मैंने वो भाषण उसके अध्यक्ष का सुना है, जिसका एक वाक्य मैं कभी भूला नहीं हूँ। और पिछले 25-26 साल से लगातार मैं उसको दोहराता हूँ, आपके सामने भी दोहरा रहा हूँ। और उसका सार तत्व भी पवन गुरु जी ने आपके सामने कहा था, लेकिन इसको याद करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कितना सहज है लेकिन कितना तथ्यपूर्ण है।
ये वाक्य है, एजुकेशन इन एवरी कंट्री मस्ट बी रूटेड टू कल्चर, कमिटेड टू प्रोग्रेस। आपकी जड़ें गहराई तक उस देश की मिट्टी में गई होनी चाहिए, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता प्रगति के लिए होनी चाहिए, प्रगति के प्रति होनी चाहिए। मैं जब इस वाक्य को सन 2000 के बाद अपने उसमें एनसीईआरटी के करिकुलम में लाया, तो बहुत से लोगों को याद होगा कि लोगों को कुछ उसमें और दिखाई दिया, बहुत सी चीजें हुई, लेकिन वो कहानी इस समय कहने की नहीं है। नई शिक्षा नीति ने उस तथ्य को स्वीकार किया है। अब भारत की संस्कृति से परिचित कराने की बात कही गई है, उन मनीषियों से परिचित कराने की बात कही है जिन्होंने भारत की ज्ञान परंपरा को आधार दिया और ऐसा ज्ञान दिया जो आज सारा विश्व देखना चाहता है। जो मैंने दैवऋड के संबंध में बात कही, आज आयुर्वेद की तरफ लोग कितना ध्यान दे रहे हैं, आज भारत की ज्ञान परंपरा, उसके ग्रंथों की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। और यहाँ तक है कि एक आपको याद होगा, बहुत से बार बार ये दोहराया जाता है कि अर्नोल्ड टॉयनबी ने लिखा कि अगर के सभ्यता की जो बात पश्चिम की सभ्यता में कही जाती है, उसकी शुरुआत पश्चिम से हुई थी, लेकिन वो सभ्यता जिसे हिंद स्वराज में गांधी जी ने शैतानी सभ्यता कहा था, विनाश की ओर ही ले जा रही है। और अगर आपको मनुष्यता को, इस पृथ्वी को बचना है, तो रास्ता केवल भारत का रास्ता है। भारत का रास्ता क्या है? भारत का रास्ता शांति का रास्ता है। भारत का रास्ता सर्वभूत हिते रता का रास्ता है। भारत का रास्ता सर्वे भवन्तु सुखिना का रास्ता है। भारत का रास्ता वसुधैव कुटुम्बकम का रास्ता है। और इसके लिए भारत की शिक्षा पद्धति क्या है? अध्ययन, मनन, चिंतन, उपयोग। 4 वाक्य है जो मुझे लगता है कि हर माता पिता को भी याद होने चाहिए। पंडित विद्यावास मिश्र जी ने मेरे अनुरोध पर एक पुस्तक लिखी थी, तब से मैंने ये सीखा था। इस क्रम में अध्ययन बच्चे और अध्यापक मिलकर करते हैं, जैसे भी करते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या मैंने अध्ययन किया, इसके लिए मुझे विद्यार्थी को समय देना है। 5 मिनट 10 मिनट वो विचार करे, ध्यान दे कि आज मैंने घंटे भर में क्या सुना, क्या बचा है मेरे मन। उसके बाद अपने मित्रों से चर्चा करें, जिसको आज हम पीयर लर्निंग कहते हैं। और उसके बाद उपयोग। उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है जिसका उपयोग ज्ञान प्राप्त करने वाले को न मालूम और जिसका उपयोग करने के लिए वो उद्यत न हो। हमारे यहाँ तो ज्ञान किस लिए प्राप्त किया जाता था? कोई बड़ी फर्म इस्टेब्लिश करने के लिए नहीं होता है, जल्दी करने की प्रतिस्पर्धा नहीं। सर्वभूत हिते रता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। परंपरा तो मेरी यही। और उसी से जो दूसरी परंपरा जन्म ली, वो इस शिक्षा नीति में आई है, और वो है अपरिग्रह। मुझे उतना ही लेना है प्रकृति से जितना मेरी आवश्यकता है, उससे अधिक मुझे संग्रह नहीं करना है, क्योंकि इस पर सभी का अधिकार है। और ये अपरिग्रह का जो सिद्धांत है, वह माता पिता दिखा सकते हैं। अनावश्यक चीजों का संग्रहण बच्चे के मन मस्तिष्क पर सही प्रभाव नहीं डालता, और वो आजकल हम भूल गए। हमें भूलना नहीं है, वो हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो रूटेड टू कल्चर, कमिटेड टू प्रोग्रेस में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आगे चलकर इस शिक्षा नीति में अध्यापकों को अपने मन में उतारनी पड़ेगी, वो है पृष्ठ, प्रतिपृष्ठ और परिपृष्ठ। The great dialogical tradition of India will now become the part and parcel of teacher preparation in every institution. In every classroom it has to be put to practice. क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का उपयोग कर सके, उसकी क्षमता विकसित हो, तो निश्चित रूप से आपको ऐसे अवसर देने पड़ेंगे जिनमें वह अपनी जिज्ञासाएं आपके सामने कर सके। आप उसे, हो सकता है जिस दिशा में वो सोच रहा है, आप कुछ 2-3 और दिशाएं बता सके। इससे उसकी सृजनात्मकता और बढ़ेगी और ये नवाचार की ओर ले। तो ये हमारे क्या पढ़ाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे पढ़ाया जाए? ऑनलाइन भी पढ़ाई होगी, सामने सामने भी होगी, तकनीकी का पूरा इस्तेमाल होगा। लेकिन जो
आमने सामने की शिक्षा है वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगी, ये सभी लोग मानते हैं और मानना चाहिए भी। यहाँ पर एक चीज और आई है, उसी डिलोस कमीशन में कहा गया था कि शिक्षा के 4 स्तंभ हैं। 3 तो हम सब जानते हैं कि लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, और चौथा उन्होंने कहा कि जो इन तीनों से भी महत्वपूर्ण हो जाएगा वो है लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ साथ मिलकर रहना। इस समय दुनिया भर में ये प्रश्न बहुत तेजी से उभरा है। बहुत से लोग यूरोप जैसे देशों में गए हैं, अन्य जगह भी गए हैं, जिनकी संस्कृतियां अलग हैं, जिनके धार्मिक रीति रिवाज अलग हैं, जिनकी परंपराएं अलग हैं, जिनकी संस्कृति, उन देशों में बड़ी समस्या है जहां पर एक ही धर्म था, एक भाषा थी, जीवन आराम से चल रहा था। अब उन्हें यह सीखना है कि विविधता की स्वीकार्यता कैसे हो, कैसे नए लोगों को अपने में आत्मसात करें, क्योंकि वो वापस तो जाने वाले हैं। इसका समाधान भारत की तरफ लोग देख रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमें ऐसे लोग तैयार करने हैं जो विश्व शांति के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व को भी समझ सकते हो, जो लर्निंग टू लर्न जैसी चीजों से परिचित हो गए हों, जो नया सीखने को तैयार रहें। उन्हें इसके लायक बनाया जाए कि मैं जीवन भर सीखता रह सकता हूँ। यावत जीवेत अधीयते विप्रा, यूनेस्को ने तो अब ये कहा है लर्निंग टू लर्न। हमारी सभ्यता में तो बहुत हजारों साल पहले हमें कहा गया था कि जो समझदार व्यक्ति होता है वो जीवन पर्यंत सीखता रहता है, पढ़ता रहता है, करता रहता है। यावत जीवे, जब तक जीवन है सीखते रहना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तो ये चीज आपको हर बच्चे को सिखानी है। और ये कौन सिखा सकता है? जो स्वयं बड़ा होता रहे, जो अध्यापक स्वयं भी अपना अध्ययनशीलता का प्रदर्शन जिसका रहे। मैं एक बात बार बार कहता हूँ, बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके आइकॉन अध्यापक ही होते हैं। 7 साल का बच्चा जब घर वापस जाता है और माँ बाप उसके होमवर्क में कुछ बताते हैं तो कहता नहीं, आपको नहीं आता है, मिस ने ऐसा बताया, अध्यापक जी ने ऐसे कहा, और वो उनका विश्वास वहां जीत लेता है। तो अध्यापकों के सामने एक बड़ी समस्या ये होगी कि वे आचार्य का निर्वहन कैसे, आचार्य होने का निर्वहन कैसे करें, आपका आचरण अनुकरणीय कैसे बने, इसमें और कोई सहायता नहीं कर सकता। तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन ये तो आपको, यदि आपके अंदर ये भावना आ जाए कि बच्चे मुझे आइकॉन मानते हैं, मुझे आदर्श मानते हैं, मेरी हर चीज देखते हैं, अवलोकन करते हैं, ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, केवल विषय ही नहीं पढ़ते, तो निश्चित रूप से हमें बहुत सी चीजें, इस पर थोड़ा मैं और बता देता हूँ। ये जो प्रयास है लर्निंग टू लिव टुगेदर, इसके लिए एक संसद की समिति ने कहा था कि सब धर्मों के मूल तत्व बच्चों को बताने चाहिए। हम वहां पर रिचुअल्स डॉगमास की बात नहीं करेंगे, हम ये बताएंगे कि सब धर्मों में समानताएं क्या है। एनसीईआरटी ने भी सन 2000 में कहा कि चिल्ड्रन मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स, दे शुड नो द कॉमनलिटीज एंड लर्न टू रिस्पेक्ट डिफरेंस। देखिए कितना महत्वपूर्ण वाक्य है, दे शुड नो द कॉमनलिटीज and learn to respect differences wherever these exist. No rituals, no dogmas are to be taken up in the schools. इसको लेकर के कुछ चर्चाएं हुई, मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। उन्होंने कहा ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था, इससे देश में समरसता बढ़ेगी, लर्निंग टू लिव टुगेदर की भावना सुदृढ़ होगी। और वो जो 5 मूल्य थे जो इस नई शिक्षा नीति में भी आए हैं, उन्हें आपको याद दिलाने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। उस समय जो 5 मानवीय मूल्य हम लोगों ने पाए थे कि वो विश्व में सभी को स्वीकार, कोई ऐसा पंथ, कोई ऐसा सभ्यता, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो उन 5 मूल्यों को न स्वीकार करता हो। वो 5 मूल्य हैं, पहला ट्रुथ, सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, पीस, पीस, शांति। तो ट्रुथ, पीस, नॉन वायलेंस, 3। चौथा धर्म, धर्म का वो अर्थ है जो लोग दूसरे ढंग से करते हैं, लोग उसका वास्तविक करते हैं। धर्म का अर्थ है सही आचरण, सद आचरण। तो चौथा हुआ धर्म, और 5वां है प्रेम, लव।
क्या कोई ऐसा पंथ या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जो इन पांचों को स्वीकार न करता? और जब बच्चे जानेंगे कि मेरे बगल में बैठा मेरा मित्र जिसका पंथ अलग है, उसमें और मेरे में इतनी समानताएं हैं, तो जहां जहां अंतर है छोटे मोटे, उनको बच्चा स्वीकार करेगा, उसकी मित्रता प्रगाढ़ होगी, उनका सामाजिक गठबंधन अच्छा होगा। और ये इस शिक्षा नीति में स्वीकार किए गए हैं, पुनः ये आए हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो आपके सामने मैं रखना चाहता था। अध्यापकों के संबंध में जो बहुत संस्तुतियां की गई हैं, उसमें 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की मान्यता को आगे बढ़ाया गया है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में मैं 11 साल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में रहा हूँ, और वहां पर ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम चलता था। BA BEd BSc BEd की डिग्री मिलती थी। कक्षा 12 के बाद विद्यार्थी आते थे, 4 वर्ष वे लगातार रहते थे। मैंने सोवियत संघ में भी इसका अध्ययन किया था। ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम वहां बहुत पहले से चल रहे थे, और एक शोध अध्ययन करने से पता लगा कि जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में बच्चे अध्यापक बनते हैं, रीजनल NCERT के 4 रीजनल कॉलेज में ये पाठ्यक्रम चलते थे, वो अध्यापक के रूप में बहुत अधिक सफल होते हैं बनिस्बत उनके जो 1 वर्ष के पाठ्यक्रम में आते हैं और BEd की डिग्री लेकर जाते हैं, वे ग्रेजुएट होते हैं। ये बच्चे जो BSc BEd करने आते हैं वो 4 साल के होते हैं। इसका अध्ययन हुआ। असल में पहले एक बार ये भी हुआ था कि इस प्रयोग को बंद कर दिया जाए, उसको दोबारा प्रारंभ करने के लिए उसका अध्ययन किया गया, और मैंने उसी में भाग लिया था, और उसके आधार पर पुनः वो कार्यक्रम शुरू हुआ, और आज सारे देश में वो बात मान ली गई है। ये पाठ्यक्रम जब चलेंगे, और ये कहा गया कि 2030 तक चलेंगे, सब जगह हो जाएंगे, तो आप निश्चित मानिए कि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता अवश्य ही ऊपर आएगी और बढ़ेगी, और बढ़नी चाहिए। इसी बीच में NCERT के अध्यक्ष के रूप में हमने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की बात कही थी, क्योंकि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए बहुत संसाधन चाहिए। उसके बारे में भी इसमें थोड़ा सा विचार है कि जब तक हम पूरी तरह 4 वर्षीय बन जाए तो 2 वर्ष वाला पाठ्यक्रम भी चल सकता है, वे लोग भी अच्छा कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ मेरा समय पूरा होने वाला होगा, तो मैं आपको 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक बार महात्मा गांधी से किसी ने पूछा था कि आपके जीवन का सबसे सृजनात्मक मोमेंट क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट क्रिएटिव मोमेंट ऑफ योर लाइफ? मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि हर अध्यापक अपने से पूछे कि मेरा सबसे अधिक योगदान वाला दिन कौन सा था, सबसे अधिक नया चीज करने का दिन कौन सा, सबसे अधिक नवाचार वाला दिन कौन था, मैंने कब किसी बच्चे को सबसे अधिक सहायता की थी। इसलिए मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट वाज द मोस्ट क्रिएटिव मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो उन्होंने सोचने के बाद कहा कि कई हैं जिनमें से विचार मुझे करना पड़ेगा, लेकिन द मोस्ट क्रिएटिव मोमेंट ऑफ माय लाइफ वाज द पीटर मारिट्सबर्ग इंसिडेंट। पीटर मारिट्सबर्ग इंसिडेंट क्या था? गांधी जी युवक थे, दादा अब्दुल्ला के लिए वकील बनकर गए थे, फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर ट्रेन में गए, बैठे, एक अंग्रेज आया, उसने कहा काले लोग यहाँ नहीं बैठ सकते। गांधी ने कहा मेरे पास टिकट है। उन्होंने कहा नहीं, टिकट हो कुछ हो, मेरे साथ तुम बैठ नहीं सकते। धक्का दिया, मारा पीटा, सब किया। पुलिस वाला आया, उठा के फेंक दिया। स्टेशन पर बैठे। अब वहां पर ऐसी घटना होती है, मेरे साथ हो, सामान्य व्यक्ति के साथ होगी तो क्या करेगा? उसे क्रोध आएगा, वो चाहेगा जिसने मेरे साथ ऐसा किया उसको सजा मिले, वो सजा दिलाने का प्रयास करेगा, FIR करेगा, जो भी करेगा। गांधी ने उस समय अपने मस्तिष्क का उपयोग किया, वैचारिकता, पावर ऑफ आइडियाज एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। और क्या उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जो सुमन जब वहां बैठे थे तो क्या उनके मन में आ रहा था, वो सुनिए। मैंने अपने धर्म पर विचार किया, या तो मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए, नहीं तो जो अपमान हो उसे सहकर प्रिटोरिया पहुंचना चाहिए और मुकदमा खत्म करके देश लौट जाना चाहिए, जिसके लिए मैं आया हूं खत्म करूं। मुकदमा अधूरा छोड़कर भागना तो गलत होगा। मुझे जो कष्ट सहना पड़ा है सो तो ऊपरी कष्ट है, वह गहराई तक बैठे महारोग का लक्षण, और ये महारोग है रंग द्वेष। यदि मुझमें इस गहरे रोग को मिटाने की शक्ति हो
तो उस शक्ति का उपयोग मुझे करना चाहिए। ऐसा करते हुए स्वयं जो कष्ट सहने पड़े वो सब सहने चाहिए और उनका विरोध रंग दोष मिटाने की दृष्टि से करना चाहिए। क्या इसका अर्थ क्या है? उस दिन उस अपमान की घटना से गांधी ने अपने क्षितिज को विस्तार दिया, अपनी वैचारिकता को व्यक्तिगत स्तर से उठाकर वैश्विक स्तर पर ला दिया। रंग भेद के कारण मेरा अपमान हुआ है, लेकिन लाखों लोगों का होता रहा है, सदियों से होता रहा है, पीढ़ियों से होता रहा है। मैं अपने लिए लड़ूं या उनके लिए लड़ूं? छोटी चुनौती के बजाय बड़ी चुनौती स्वीकार करूं। अब देश के हर अध्यापक को बड़ी चुनौती स्वीकार करें और उस बड़ी चुनौती को स्वीकार करने के लिए बहुत कुछ और करना पड़ेगा। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं चाहता हूं कि 3 शब्द मैं आपके सामने रखूं। आप शिक्षक हो, माता पिता हो, कोई भी हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, ये तीनों शब्द आपके साथ लगे रहते हैं। पहला है तंत्र, व्यवस्था, एस्टेब्लिशमेंट। जैसे जिला शिक्षा अधिकारी से वास्ता पड़ता है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से पड़ता है, उसके दफ्तर में काम करने वालों से पड़ता है। जब लोग फिनलैंड की बात करते हैं, लोगों ने कहा कैसे हम कर सकते हैं। एक मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई तो मैंने कहा ये काम कर दीजिए। बोले बताइए। मैंने कहा इसका कोई संसाधन नहीं लगे। क्या है? मैंने कहा आप एक आदेश शुरू करिए कि अगर कोई अध्यापक, चाहे वो प्राइमरी का हो, कोई भी हो, शिक्षा कर्मी हो, अगर जिला शिक्षा अधिकारी के कमरे में जाए तो जिला शिक्षा अधिकारी खड़े होकर पहले उसे कुर्सी पर बैठा दे, प्रणाम करे, उसके बाद उसकी बात सुने। आप मानेंगे? उन्होंने कहा नहीं, बड़ा मुश्किल। तो मैंने कहा इसीलिए फिनलैंड में और हमारे में फर्क है। The most important person in Finland is the teacher. Nobody is senior to him. Nobody is better than him. तो तंत्र में तंत्र को संवारिए, सुधारिए अगर आप कर सकते हैं, कम से कम उसका अध्ययन करिए। दूसरा है तथ्य। अपने तथ्यों पर हमेशा सुदृढ़ रहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। Never enter a class if you are not fully prepared. इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरे एक अध्यापक ने कहा था कि अगर मैं जीवन भर तय किया था कि हर बार पढ़ने के बाद कक्षा में अंदर जाऊंगा, बिना पढ़े। वो 25 साल पढ़ा चुके थे उस समय, घंटों विषयों पर बात कर सकते थे। कभी उन्होंने किसी कागज का इस्तेमाल नहीं किया, मगर हम लोगों को उन्होंने एक पेपर दिखाया कि आज मुझे क्लास में जाना था, मैंने ये तैयारी की। हम लोग दंग रह गए देखकर। बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर फैक्ट, जहां भी बात हो, चर्चा हो, पढ़ाना हो, कुछ हो। और तीसरा है तत्व। आपके कार्य का तत्व बहुत ऊंचा होना चाहिए। जो लक्ष्य है वो छोटा नहीं होना चाहिए। जे.आर.डी. टाटा ने एक बार कहा कि ऑलवेज एम एट परफेक्शन। परफेक्शन कठिन है, परफेक्शन मिला नहीं किसी। परफेक्ट तो एक ही होता है, बट एम एट परफेक्शन यू विल अचीव एक्सीलेंस। जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आपको उत्कृष्टता तो मिल ही जाएगी। हर अध्यापक को ज्ञानवान होना होता है, अपेक्षा है समाज की, व्यक्ति की, बच्चे की। लेकिन अब समय आ गया है कि ए लर्निंग टीचर इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ए लर्नर टीचर हैज आल्सो टू बी ए लर्निंग टीचर। इसलिए तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 शब्द हैं, तथ्य, तंत्र, तथ्य और तत्व। इसको देखिए तो आपको निश्चित रूप से अगर थोड़ी देर के लिए हम राजनीतिक दलों वगैरह को भूल जाएं और कमल की बात करें तो कमल क्या है? कमल सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतीक है हमारी सभ्यता में। रामधारी सिंह दिनकर ने जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो एक बड़ी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी हैं जीवन में। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जो हमने अभी इतनी देर में बात की कि प्राचीन ज्ञान, नया ज्ञान और धर्म, वो सत्य, हिंसा, धर्म। धर्म में वैसे सब आ जाता है, सत्य, हिंसा। धर्म माने सही आचरण।
इस सबका सम्मिश्रण ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। एनसीटी का एम्बलम है गुरुर गुरुतमो धामा, अध्यापक मनुष्यत्व से दैवत्व की ओर ले जाता है। जिस अध्यापक ने इसको अंतर्निहित कर लिया, इस उत्तरदायित्व को, वो श्रेष्ठ अध्यापक अवश्य बन जाएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, जब भारत आजाद होने वाला था तो सबकी अपेक्षाएं बड़ी बड़ी थी। उन्होंने कहा, एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, एक हाथ में सत्यम शिवम सुंदरम और दूसरे में नया ज्ञान। एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर के उठने वाला है जग में हिंदुस्तान। नई शिक्षा नीति को पढ़ते समय, उस पर विचार करते समय एक बार याद कर लीजिए, एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान। जो मैंने वहां कहा था, हिरोशिमा की घटना की बात की थी, ज्ञान था लेकिन धर्म नहीं था, मूल्य नहीं थे, विवेक नहीं था। तो मुझे विवेक भी चाहिए, विज्ञान भी चाहिए, मुझे सत्यम शिवम सुंदरम भी चाहिए, मुझे अपनी सभ्यता का प्रमाण, वो आधार है, उससे मुझे परिचित होना चाहिए। मेरे अंदर गर्व और गौरव होना चाहिए कि ये मेरा देश दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि मैं विविधता की स्वीकार्यता मेरी नस-नस में है। बंध निरपेक्षता मेरा ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिखा सकता हूँ। और मैं अपने को अगर तैयार कर लूँ तो विश्व स्वयं ही मेरे पास आएगा और मुझसे कहेगा, भारत हमें रास्ता दिखाए, भारत रास्ता दिखाएगा। अध्यापकों को इसी ढंग से आगे बढ़ना होगा। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ऋषि गुरुशाला बहुत बड़ा काम कर रही है। आजकल मैं कोई भी लेक्चर बिना फीस लिए नहीं देता हूँ। सबसे मैंने कहा मैं फीस लूंगा, और मेरी फीस ये है कि जितने लोग कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है, वो मुझे फीस दें। कम से कम एक उस बच्चे के लिए मोबाइल का इंतजाम करें जो ऑनलाइन लर्निंग में इसलिए ही भाग नहीं ले रहा है कि उसके घर के लोग उसे मोबाइल नहीं दे पा रहे हैं। आपके पास रखा हुआ हो, आप नया खरीद के दे दें, लेकिन इसमें हिस्सा लीजिए। इस क्रियान्वयन में, आगे बढ़ाने में, इसकी मैसेज देने में ये काम आएगा। यही मेरी फीस होगी। आपने मुझे सुना, गुरुजी ने मुझे बुलाया, मेरे लिए बड़े अच्छे शब्द कहे, जो अच्छी शब्द ही थी, परंतु फिर भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऋषि गुरुशाला में अगर मैं भी कुछ योगदान कर सकूं तो निश्चित रूप से करूंगा। मुझे उसके बारे में जानकर पहले भी प्रस्तुता हुई थी, इस बार भी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर जे.एस. राजपूत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सर, आपने जो हमसे टीचर्स के रिगार्डिंग जो बात करी है, वो बहुत सही बात करी है। और जो आपने कहा कि देश का कर्तव्य है कि वो अब टीचर्स पे भरोसा करे, उनको वो एनवायरनमेंट दे जिससे सोसाइटी में उन बच्चों में ट्रांसफॉर्म आ सके जो हम चाहते हैं। साथ ही साथ आपने टीचर्स को भी बताया कि हम सिर्फ गवर्नमेंट से ही एक्सपेक्ट ना करें कि टीचर्स को ही सशक्त बनाया जाए। साथ ही साथ टीचर्स भी जब क्लास में एंटर करें तो वो पूरा प्रिपरेशन के साथ एंटर करें, क्योंकि एक टीचर जब क्लास में एंटर करती है विदाउट प्रिपरेशन तो वो बच्चे भी समझ जाते हैं कि टीचर्स हमारी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो बहुत जरूरी है टीचर्स के लिए भी कि वो प्रिपेयर्ड रहें। सर, आपने एक बात और कही थी कि एक टीचर अपने बच्चों की रुचि बहुत अच्छे से जानती है कि मेरे बच्चा किस चीज में ज्यादा रुचि लेता है, लेकिन एक कक्षा जिसमें 50-60 बच्चे हैं, उसमें एक टीचर कैसे सबकी रुचि का ध्यान रखे? व्यवहारिकता में बहुत कठिन है, लेकिन नई शिक्षा नीति में कहा है कि अब केवल नियमित अध्यापक, प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त होंगे और उचित अनुपात में होंगे। अध्यापकों को अनावश्यक अशैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। इस सारी बात का ध्यान उसमें रखा गया है। हम अपेक्षा करते हैं कि ये तब संभव होगा जब जो अनुपात कहा गया है शिक्षक और छात्र का, उस अनुपात का पालन सही ढंग से होगा, तब ये संभव होगा। बहुत सी जगहों पर हो रहा है, कुछ स्कूलों में, हमारे यहाँ भी हो रहा है, जहाँ पर उचित संख्या में अध्यापक हैं। व्यवहारिकता में इसे हम लोगों ने देखा।
आपकी आवाज नहीं आ रही बस। सर हमारे साथ प्रियंका शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। उनका प्रश्न है कि अगर हम NEP 2020 की बात करें तो जो नए टीचर्स हैं जो इस फील्ड में अभी अभी आए हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो नए आए हैं, थोड़ा सा उत्तर मेरा जो बहुत अच्छा नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में शिक्षकों की तैयारी के जो संस्थान हैं, उनके संबंध में हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा की एक समिति ने 2012 में कहा था कि कम से कम 10,000 देश में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो गुणवत्ता में कतई रुचि नहीं लेते हैं, केवल डिग्री देते हैं। ये हमारी समस्या है। 10,000 में अगर 100 बच्चे भी एक में थे तो आप समझ सकते हैं देश में कितने लोग ऐसे होंगे। जो भी नए अध्यापक हैं उनको सबसे पहले मैं कहूंगा कि वे मेरे उस वाक्य को याद करें कि यू आर ए लर्नेड पर्सन, आपके पास डिग्री है, आपने पढ़ा है, आपने अध्ययन किया है। उसका सम्मान करते हुए मैं कहूंगा आप लर्निंग टीचर बन जाइए, आप लर्नर बन जाइए और लर्नर बनकर अपने आत्मसम्मान को बढ़ा लीजिए। कोई ये ना कह पाए कि आपने फला चीज पढ़ी नहीं है, या ये मैंने वो पढ़ाया नहीं किया, या मैंने अनुभव नहीं किया, या मैं जानता नहीं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इस समय बच्चे बहुत प्रखरता के साथ नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अनेक स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए उनके साथ, उन्हें सिखाने के लिए, उनके साथ मिलकर सीखने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में कार्य करने के लिए आपका आत्मसम्मान बढ़े, उसके लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करें। और आगे चलिए। सर हमारे साथ ऋषिकुल शाला सेंटर नंबर 13 छत्तीसगढ़ से नहीं, आवाज नहीं आ रही, आवाज ठीक नहीं, आवाज ठीक करिए। सर ऋषिकुल शाला सेंटर नंबर 13 छत्तीसगढ़, वहाँ से बरखा तिवारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो आपसे एक प्रश्न करना चाहती हैं। बरखा जी क्या आप सकते हैं हमें? सर गुड इवनिंग, मैं छत्तीसगढ़ से बरखा तिवारी। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि NEP 2020 में मैसिव प्राइवेटाइजेशन को देखते हुए क्या टीचर्स भी प्रभावित होंगे? मेरी अपेक्षा ये है कि, और मैं इसी बात को बार बार कहता हूं कि सरकार को अपना जो उत्तरदायित्व है उसे निभाना चाहिए। दूसरा, जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें जो व्यापारीकरण है उसको कम करने के लिए नियामक संस्थाओं को आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। मैंने स्वयं ये किया है। मैं जब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का अध्यक्ष था तो मैंने कई विश्वविद्यालयों में B.Ed के वो कार्यक्रम बंद कर दिए थे। इसमें अनामलाई, कुर्चियत और रोहतक जैसे थे, जो केवल उनके रिकॉर्ड में था कि 100 रुपए अगर बच्चे से लेते थे तो केवल 37 कार्यक्रम पर करते थे, बाकी में AC बिल्डिंग्स वगैरह लेते थे। और उसमें सफलतापूर्वक हम लोगों ने कार्य किया था, सारे देश को उसकी जानकारी हुई थी। और एक प्रकार तो हमें इस तरह के कार्य फिर से करने पड़ेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में वही आए जिनकी शिक्षा में रुचि है, अनुभव है। व्यापार करने वाले लोग शिक्षा में ना आने पाए। और इस पर कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं जो नई नियामक संस्थाएं बनेंगी, वे निश्चित रूप से कार्य करेंगी। और जो व्यापारीकरण है, जिस पर मैंने अभी जस्टिस वर्मा कमेटी का जिक्र किया था, हर व्यक्ति उससे परिचित है। और हम सारे के सारे लोग जो इस समय निर्णय लेते हैं, शिक्षा में हैं, वे इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि ऐसी स्थितियां न बने। दूसरा, हमारे सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को सम्मानपूर्ण जीवन मिले। उन्हें ये अनियमित होना, थोड़े से मानदेय पे कार्य करना, 10-12 साल प्रतीक्षा करना, इससे गुणवत्ता में ह्रास होता है, बच्चों का ही नुकसान होता है। और बच्चों को जब नुकसान होता है तो देश का नुकसान होता है। ये सारी बातें चर्चा में आई हैं और निश्चित रूप से आगे जो रूपरेखा बनेगी उनमें इनका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। सर ऋषिकुल शाला सेंटर नंबर 5 मुंबई से चित्रा पुनिया जी हमारे साथ हैं। उनका भी एक प्रश्न है। चित्रा जी, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? मेरे को आवाज नहीं। राम 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 हाँ, राम राम सर। हाँ, राम राम सर। I'm Chitra J. Panya
a teacher from Rishikul Shala, Mumbai. I want to ask that NEP have norms of public and private partnership, according to which local parents group examine the teachers. Is it right rule? As this may affect the abilities of the teachers. What should we do about this? Please guide. आपका प्रश्न फिर से जरा कहिए, दोबारा करिए, आवाज थोड़ी गड़बड़ हुई है. हाँ जी. I want to ask that NEP have norms of public and private partnership, according to which local parents group examine the teachers. Is this rule right? As this may affect the abilities of the teachers. What should we do? Right. What should we do? No, you have to do nothing about it. This is not the rule, and they will not come and give a question paper to teacher and examine. No. This is a general interaction that will take place. In general interaction, the parents can also point out, others can also point out what are the deficiencies in general in the school or vis-a-vis the parents. ये तो आजकल पेरेंट टीचर एसोसिएशन में भी होता है. उसी तरह की चीजें अगर इस दूसरी व्यवस्था बनेगी तो उसमें भी होगी, और इसके बारे में मॉडलिटीज डिसाइड की जाती. वो अभी आप इससे चिंतित मत होइए, आगे चलकर बनने दीजिए. उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा किसी भी अध्यापक के सम्मान पर कोई चोट न पहुंचे. निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है, इस पर चर्चाओं में मैंने भाग लिया है. आप इसके बारे में निश्चिंत रहें. आगे चलिए. क्या ऐसी बुक्स रेडी हैं जो इंडिया को इंडिया से जोड़ सकें? क्या हमारे पास अभी ऐसी बुक्स रेडी हैं जो इंडिया को इंडिया से जोड़ सकें? ऐसा बहुत सा साहित्य उपलब्ध है जो भारत की संस्कृति के लिए बात करता है. नेशनल बुक ट्रस्ट की बहुत सी किताबें हैं, विभिन्न भाषाओं में हैं. ICSSR है, ICCR है, इनसे अगर संपर्क करें, उनको देखें. अन्य प्रकाशकों की पुस्तकों भी हैं. NCERT ने भी ऐसी पुस्तकें बनाई हैं. जो बात कही जा रही है वो ये है कि जब टेक्स्ट बुक्स बनेंगी, द टेक्सचुअल मटेरियल दैट विल बी प्रिपेयर्ड, इट विल टेक नोट ऑफ दिस. जैसे मैंने उदाहरण दिया कि फिलॉसफी की बात पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में जाइए तो आपको सारे वेस्टर्न फिलॉसफर्स ही पढ़ाते हैं, इंडियन फिलॉसफर्स का नाम नहीं करते, उनके बारे में नहीं जानते. उस स्थिति को सुधारा जाएगा. और चूंकि देश के अधिकांश जो कॉमन सिलेबस होता है वो कक्षा 10 तक चलता था, अभी तक 12 तक चलेगा. जैसे इतिहास है, इतिहास एक स्थिति के बाद बच्चे बहुत थोड़े लोग पढ़ते हैं. तो जो प्रारंभिक स्थिति में बच्चों को इतिहास की दृष्टि बनाई जाएगी, उस दृष्टि में भारत का इतिहास वस्तुपरक इतिहास होगा. अब वो इतिहास नहीं होगा जो विचारधाराओं के बंधन में लिखा गया है. ये बात मैंने कही नहीं है, लेकिन मैं अब कह रहा हूँ कि भारत का जो इतिहास है वो इतिहास भारतीयता से नहीं है, वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर लिखा गया है. जैसे मार्क्स ने कहा था कि भारत का कोई इतिहास है ही नहीं, वो तो गडेरियों का इतिहास है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका इतिहास केवल हारने का है, लोग जाते हैं लूट कर लौट आते हैं, दे डोंट हैव ए हिस्ट्री. अब इस तरह की बात करने वाले लोग अगर भारत का इतिहास लिखेंगे तो वो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, और न रहा है. मैंने भी NCERT में डायरेक्टर रहते हुए अपने इतिहास की पुस्तकों को, भाषा की पुस्तकों को, समाज विज्ञान की पुस्तकों में ये परिवर्तन लाने का प्रयास किया था, और हमने वे पुस्तकें बनाई भी थी. लेकिन कई बार शिक्षा जो है राजनीति के सामने पीछे हो जाती है, इसलिए वो पुस्तकें नहीं है. लेकिन अब नई शिक्षा नीति भारत की संस्कृति को अपने में समाहित करने की बात कहती है, वो मूल्यों की बात कहती है जो मैंने चर्चित की. अब जो पाठ्यक्रम बनेगा उसके लिए समितियां बनेगी, एक एक चीज पर विचार होगा, एक एक चैप्टर पर विचार होगा, और तब जो कुछ निकलेगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, किसी विचारधारा से बना हुआ नहीं होगा, किसी के डायरेक्शन में ऐसा नहीं बनेगा. केवल विद्वानों के द्वारा देश हित में, और जो तथ्य शब्द मैंने इस्तेमाल किया, तथ्यों पर आधारित होगा. आज इतिहास को लेकर के सारे तथ्य, सैटेलाइट भी हमें तथ्य दे देता है, नया शोध हमें तथ्य देता है, उन सब हुए पुस्तकें बनी.
हाँ, आवाज आनी चाहिए भाई, आगे बढ़िए। अब आवाज बंद है उधर से। हेलो, से पहले क्या हमें टीचर्स ट्रेनिंग पे यानी बीएड और एमएड की ट्रेनिंग सिलेबस इन पे वर्क नहीं करना चाहिए? नहीं, आप प्रश्न, आपकी आवाज, हमारी जो आने वाली टीचर्स हैं वो रेडी रहे। प्रश्न फिर से क्या सुन पा रहे हैं सर? अब मुझे थोड़ा सा सुनाई दिया। जी, मेरा प्रश्न है जी सर, मेरा प्रश्न है कि एनएपी लाने से पहले क्या हमें टीचर्स ट्रेनिंग यानी बीएड ट्रेनिंग, एमएड ट्रेनिंग इन पे फिर बंद हो गई बात। कुछ प्रॉब्लम है आपकी उधर से? आपकी आवाज बंद है भाई। सर अब आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सुन पा रहे हैं, लेकिन बीच में बंद हो जाता है, फिर बंद। सर मेरा प्रश्न है, हाँ, एनईपी लाने से पहले क्या हमें टीचर्स ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए? जो बीएड कर रही हैं टीचर्स या जो एमएड कर रही हैं उनकी ट्रेनिंग पे, उनके सिलेबस में चेंजेस नहीं लाने चाहिए? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग के दो हिस्से होते हैं। ट्रेनिंग का होता है प्री सर्विस, दूसरा होता है इन सर्विस। जब ये लोग अध्यापक बनेंगे अपना कोर्स पूरा करने के बाद, तो निश्चित रूप से इनका ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन होता है कि हमें नई चीजें बताई जाएंगी, इन्हें सिखाया जाएगा, और अपेक्षा ये की जाती है कि जो भी डिग्री लेकर आएगा वो निश्चित रूप से सीखने के लिए तैयार रहेगा। अगर हम इनके लिए प्रतीक्षा करेंगे तो हमारी शिक्षा नीति किताबें बनने सारा काम रुक जाएगा, वो ज्यादा नुकसान देगा बनिस्बत इन सर्विस एजुकेशन पर खर्च करने के। इट इज बेटर टू गो थ्रू इन सर्विस एजुकेशन। और जब भी नीतियां बनी है, 1986 की नीति बनी थी, उसके बाद इन सर्विस एजुकेशन के बहुत मैसिव प्रोग्राम्स हुए थे, मैंने भी उनमें हिस्सा लिया था। 92 के बाद जब नई नीति फिर से आई थी, आपको याद होगा 92 में आई थी, तो उस समय नीति बनाने में मैं हिस्सेदारी की थी, मैं मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी था। तब हमने ये बात की थी कि इन सर्विस ओरिएंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टीचर्स कैसे होगा, और वो बहुत बड़ा कार्यक्रम देश में किया गया था। इस बार भी ऐसा होगा। इन सर्विस एजुकेशन ऑफ ऑल द टीचर्स विल बी अंडरटेकन। और अब हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन की, ऑनलाइन टीचर देने की व्यवस्थाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने करीब 14 लाख लोगों की ट्रेनिंग की है। तो अब हमारे पास ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन जो लोग कक्षाओं में हैं उनकी प्रतीक्षा करने में हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि सभी टीचर्स अभी उसी स्थिति में हैं कि उनका रीओरिएंटेशन होना ही। सर हमारे साथ ऋचा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, उनका प्रश्न है। आवाज आप पास से बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आती, सुनाई नहीं दे रहा पूरा। जी सर। सर हमारे साथ ऋचा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, उनका प्रश्न है, एनईपी शिक्षक को समर्थक बनाने की बात कर रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक टीचर है और सरकार उनसे पढ़ाने से ज्यादा अन्य सूचनाएं ही मांगती रहती है, जिससे उनकी जो सामर्थ्य है वो भी समाप्त हो रहा है। तो क्या शिक्षक की स्थिति पर ध्यान दिया गया? बिल्कुल ध्यान दिया गया है, इसीलिए कहा गया है कि हम आगे से उचित अनुपात में अध्यापक अपॉइंट करना सरकारों की जिम्मेदारी होगी, नंबर 1। नंबर 2, अध्यापकों को अनावश्यक कार्यों से छुट्टी दी जाएगी, और ये कितना लागू होता है ये राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा, क्योंकि शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। राष्ट्रीय स्तर पर नीति बन सकती है, दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नियामक संस्थाओं को दी जा सकती है। जैसे जो सीबीएसई के स्कूल हैं, वो उन स्कूलों में सही अनुपात है या नहीं, ये सीबीएसई देखता है, अन्य जगहों पर राज्य सरकारें देखती हैं। तो सभी के सहयोग से अगर नीति को ठीक से पालन किया जाएगा तो अध्यापकों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये बात बिल्कुल सही है
इस समय स्थितियां बहुत ही विकट हैं। अध्यापकों को बहुत कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। अध्यापकों की संख्या बहुत कम है विश्वविद्यालयों से लेकर के स्कूलों तक, और समिति के सामने ये सारी बातें लगातार आती रही। बहुत सी जगह पर जहां मैं भी शामिल था, लोगों ने आकर के बातें कही हैं, राज्य सरकारों को भी समझाया गया है, और इसके बाद नीति बनने के बाद बहुत तेजी से काम हो रहा है। आज अगर आपने ध्यान दिया हो या आप इंटरनेट पे देखिए, आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, उसके 2-3 दिन पहले भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया था कि शिक्षा नीति कैसे होगी। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर भारत का प्रधानमंत्री 2 बार शिक्षा पर बात करता है, एक दिन उच्च शिक्षा पे करता है, एक दिन स्कूल शिक्षा पर। आज सारी बात हुई कि इस बार देश कितना तेजी से इस नीति को लागू करने को तैयार है। और बताइए। Sir, if time would not be infinite, we could have a lot of sessions, question answer round from you, and hearing from you is really informative and is really inspiring to have you here in this session. अब मैं सुरभि जी को आमंत्रित करूंगी जो हमारे ऋषिकुल शाला टीम से हैं और जो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करेंगे। ओवर टू सुरभि जी। We want the education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. आप सभी को राम राम। How beautifully education is defined by Dada Guru Swami Vivekananda ji. Honorable Padma Shri Professor J.S. Rajput ji, respected Dr. Pawan Sinha, Shri Guru ji, and our most valued principals, professors, and dear teachers. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this momentous occasion of Gyan Utsav. I, Surbhi Shukla, on behalf of Pawan Chintan Dhara Ashram and the entire Rishikul Shala team, extend a very heartfelt vote of thanks to our honorable speakers for gracing our occasion with their invaluable time and sharing with us their crucial opinions. 11 सितंबर वह ऐतिहासिक दिन है जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो भाषण देकर भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया था। पावन चिंतन धारा आश्रम यह दिवस कई वर्षों से ज्ञानोत्सव के रूप में मनाता आ रहा है। गत वर्ष इस कार्यक्रम की शोभा माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने बढ़ाई थी और इस वर्ष पद्मश्री प्रोफेसर J.S. राजपूत जी हमारे साथ हैं। युग प्रवर्तक व्यक्तित्व सदैव हमारे साथ हैं, यह हमारा सौभाग्य है। इस कोरोना काल के कारण हमने अपना 10वां ज्ञानोत्सव वेबिनार के माध्यम से मनाया है, लेकिन कोई भी कोरोना चिंतन की अविरल धारा को ना तो बाधित कर सका है और ना ही कर सकेगा। चिंतन की धारा भी कैसी जो पावन है, पावन चिंतन धारा आश्रम। I feel great honor to extend my deepest gratitude towards Padma Shri Professor J.S. Rajput ji, former Director, NCERT, Indian Representative, Executive Board, UNESCO. शिक्षा जगत में आप एक जानी मानी शख्सियत हैं। आपके नेतृत्व में न केवल भारतीय शिक्षा बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी शिक्षा ने स्वयं के लिए एक नया अर्थ, उपलब्धि की पराकाष्ठा और शिक्षकों ने कार्य करने की प्रेरणा दिशा प्राप्त की है और यह कार्य अभी भी जारी है। आपके कार्य से सभी शिक्षक प्रेरणा पाते हैं, जिस तरह आप स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा पाते हैं। आपके उद्बोधन से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका आभार, साधुवाद प्रोफेसर J.S. राजपूत जी। Swami ji used to say, the only true teacher is he who can immediately come down to the level of student and transfer his soul to the student's soul and see through student's eyes and hear through his ears and understand through his mind. Such a teacher can really teach and none else. And we are very lucky to got such a great teacher in our lives. Dr. Pawan Sinha, famously known as Guruji. वे स्वप्न दृष्टा हैं ऋषिकुल शाला और युवा अभ्युदय मिशन के। वे अद्भुत और बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्तित्व हैं। श्री गुरु जी का चिंतन एक ही समय में जितना क्रिटिकल है उतना ही क्रिएटिव भी है।
सेकंड्स के हिसाब से चलने वाले श्री गुरुजी ने अपने जीवन के कई दशक बच्चों की शिक्षा और उनके बचपन को संवारने में लगाए हैं और अभी भी सेकंड्स के हिसाब से जीवन जीते हुए श्री गुरुजी बच्चों के लिए बहुत सारा समय देते हैं। वे बच्चों के हृदयस्थ प्राण हैं और बच्चे उनके हृदयस्थ प्राण हैं। शिक्षा और स्कूलिंग, टीचर और एजुकेटर, शिक्षा और विद्यालय, शिक्षा और विद्या, विद्यालय और शिक्षालय, विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी में अंतर सिखाने वाले श्री गुरुजी युवाओं को भी नेतृत्व क्षमता, संस्कार और एक बेहतर व्यक्तित्व की पूंजी दे रहे हैं। श्री गुरुजी का चिंतन सदा ही समय लीक से हटकर और समय से बहुत दूर दृष्टि लिए होता है। बच्चों को राष्ट्र की संपत्ति घोषित किए जाने का स्वप्न गढ़ने वाले श्री गुरुजी को सभी बच्चों की तरफ से ही साधुवाद। Both the speakers are disciples of Swami Vivekananda ji, and both of them focused on teacher training. Children are national assets, and teaching is synonymous to nation building. If parents, management, society cooperates with teachers while they face challenges, our society and nation is benefited eventually. I also wish to express my gratitude to Dr. Kavita Asthana, our dear Guruma. She is the director of Institute of Research in Indian Wisdom. She is foundation stone of our ashram and all our ventures. वे गुरुजी की जीवन संगिनी से कहीं ज्यादा उनकी स्वप्न संगिनी है। दोनों का जीवन और जीवन के समस्त स्वप्न राष्ट्र और धर्म स्थापना के लिए समर्पित हैं और उन्हीं की छत्र छाया में हम सारे बच्चे कार्य करते हैं। मनोविज्ञान से पीएचडी की उपाधि प्राप्त गुरु मां ने केवल मन को पढ़ने का विज्ञान नहीं जानती हैं, बल्कि मन को परिवर्तित करने का हुनर भी रखती हैं। उनकी विद्वता और विनम्रता और जीवट व्यक्तित्व ने सदा ही संघर्ष को उत्सव के रूप में देखने की दृष्टि दी है। ऐसे उत्सव धर्मी व्यक्तित्व को साधुवाद, जिनके मार्गदर्शन ने सदा ही हमारे हर प्रयास को, इस आयोजन को सफल बनाया है। I feel privileged to thank all our principals, education officers, teachers, and all participants of today's event, and to all the viewers on our live channels. आप सभी ने अपना व्यस्ततम समय में से इतने महत्वपूर्ण क्षण हमें दिए। My deep sense of appreciation to all the 17 centers of Rishikul Shala, their master trainers, members of Vivek Toli, for coordinating and connecting with 1,000+ participants. Last but not the least, my Pavan production team, who made us to connect to all so easily and handle all the technicalities. हमारे आश्रम में धन्यवाद की परंपरा नहीं है, लेकिन आपके साथ के लिए साधुवाद। आप सभी के बिना यह आयोजन असंभव था। आशा करती हूँ आज के दोनों उद्बोधन हम सभी के लिए ज्ञान पूंजी को संजाने वाले रहे होंगे और निसंदेह हम सभी अपने कार्यों की दिशा सुनिश्चित कर पा रहे होंगे। हमारे अगले महीने का वेबिनार इंटरनेशनल वेबिनार होगा। Next month, on 17th October, our discussion will be on understanding educational systems of other countries. In this discussion, 3 countries will participate and discuss their learning and teaching system. आप आगे भी अपना साथ बनाए रखिएगा और इस संवाद में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी अनुरोध के साथ आप सभी को राम राम। थैंक यू सुरभि। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी गुरुजी को कि वो हमारे साथ जुड़कर सारी टीम और हमारे ज्ञानोत्सव के लिए इसी ओकेजन पे हमें दोबारा से एनलाइटन करें और ब्लेस करें सारी टीम को। ओवर टू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास शब्द नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। हमारे पास शब्द नहीं है पद्मश्री प्रोफेसर जीएस राजपूत जी को धन्यवाद देने के लिए। कोई भी शब्द कम पड़ेंगे क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन आज मिला वो अद्भुत रहा। तंत्र, तथ्य, तत्व, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण न केवल शिक्षकों के लिए हैं बल्कि आने वाले शिक्षकों के लिए भी है और जो अभी पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का जो देश विदेश से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस कार्य के लिए समय दिया। एक बात छोटी सी जरूर कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स लर्न बाय डेमोन्स्ट्रेशन। देयर इज नो इंस्ट्रक्शन सिस्टम थ्रू व्हिच द ब्रेन कैन लर्न, द माइंड कैन लर्न। तो इंस्ट्रक्शंस की बजाय डेमोन्स्ट्रेशन पेरेंट्स को देना चाहिए। इसीलिए
जो पेरेंट्स खुद एजुकेशन से जुड़े हुए होते हैं उन लोगों के लिए उनके बच्चों को सिखाना समझाना बहुत आसान होता है। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट पर ना पेरेंट्स की रहती है और न ही ये प्रायोरिटी लिस्ट पे सोसाइटी की रहती है। इसलिए आप एजुकेशन की जब बात करते हैं तो बहुत थोड़े से लोग वहां पर सुनने के लिए एकत्र होते हैं। लेकिन मैं प्रोफेसर साहब को बताना चाहूंगा कि हमारी इस वक्त आपको सुनने के लिए जो रीच लोगों की हुई है वो 31,722 लोग हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपका तेज है, आपके व्यक्तित्व का एक जीता जागता उदाहरण है कि आपसे लोग कितना सीखना चाहते हैं। तो सर का साथ यूं तो हमेशा मिलता ही रहा है और मिलता रहेगा। ऋषिकुल शाला को आपका बहुत आशीर्वाद चाहिए। ये समावेशी अनौपचारिक शिक्षण प्रणाली ये देश विदेश तक फैले और खासतौर से भारत जैसे डेवलपिंग सोसाइटी के लिए ये बहुत जरूरी है, वेयर एवरी स्टूडेंट कैन नॉट गो टू द स्कूल स्पेसिफिक एंड लर्न। तो यहाँ पर आपका जो इंस्ट्रक्शन है, आपने जिस तरीके से आह्वान किया है सभी लोगों का, वह निश्चित रूप से हम सब लोग पालन में लाएंगे। और उपस्थित सभी सज्जनों से मेरी पुनः प्रार्थना है, निवेदन है कि ऋषिकुल शाला एक ऐसा आंदोलन है जो आपका अपना आंदोलन है, राष्ट्रभक्ति का आंदोलन है। यह रीबिल्ड इंडिया का आंदोलन है, स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का आंदोलन है, गांधी जी और विनोबा जी के सपनों का भी आंदोलन यह है। इसको सफल आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर करेंगे। पुनः मैं अपने बेहद आदरणीय मुख्य अतिथि पद्म श्री प्रोफेसर जे.एस. राजपूत जी का धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आश्रम परिवार का और सारे बच्चों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम सब मिलके बोलते हैं, भारत माता की जय।